So this is another question, another RC from ZAD 2016. So let's start reading it. Each piece or part of the whole of nature is always merely an approximation to the complete truth, or the complete truth so far as we know it. In fact, everything we know is only some kind of approximation because we know that we do not know all the laws as yet. Therefore, things must be learned only to be unlearned again or more likely to be corrected. Now, what are these lines telling us? That whatever, let it be, कोई भी piece है, part है, that's only an approximation. वो complete truth होता ही नहीं, या जो truth हमें पता है वो भी it is a truth, as because we think it is truth. So everything, most of the things, most of the parts, they are actually approximation to the complete truth because we do not know everything about it. That's why they're saying, the complete truth so far as we know it. So many things you have to unlearn because you may have, learned something incorrect, which may not be as per the complete truth, but rather, only a part of it. So they needs to be corrected. The principle of science, the definition almost is the following: the test of all knowledge is experiment. So in science, we test it through experiments. Experiment is the sole judge of scientific truth. But what is the source of knowledge? Where do the laws that are to be tested come from? अब देखो एक्सपेरिमेंट में आपके पास पहले से कोई चीज होती है, कोई आपको रिलेशन टेस्ट करनी है, फिर आप उसको टेस्ट करके बता सकते हो इट वाज करेक्ट, दिस रिलेशन वाज करेक्ट, दिस रिएक्शन रियली हैपेंड और दिस रियली डिडंट हैपन. But where do you get that thing that has to be tested? What is the source? Source is experiment itself. Helps to produce these laws in the sense that it gives us hints. So कुछ hints से मतलब experiment से वो source आता है. But also needed is imagination to create from these hints the great generalizations to guess at the wonderful, simple, but very strange patterns beneath them all. And then to experiment to check again whether we have made the right guess. So, they were asking the source of knowledge. तो एक source तो definitely experiments खुद थे. एक एक्सपेरिमेंट है, उसमें आपको कुछ चीज पता चली, फिर बाद में मे बी आप उसका पार्ट दोबारा एक्सपेरिमेंट करके देखते हो. And the other thing very important is the imagination. You imagine some generalization, some laws, and then you try to test them. This imagining process is so difficult that there is division of labor in physics. There are theoretical physicists who imagine, deduce, and guess at new labs, new laws, but do not experiment. And then there are experimental physicists who experiment, imagine, deduce, and guess. So दिस इमेजिनेशन दे आर सेइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे हम सोर्स कह रहे हैं, जिसको बाद में फिर हम टेस्ट करते हैं, और उसमें एक डिविजन ऑफ लेबर है. कुछ साइंटिस्ट हैं, दे डू द थ्योरेटिकल वर्क एंड देन दे इमेजिन, डिड्यूस एंड गेस. और कुछ हैं जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, मतलब एक ग्रुप है जो एक्सपेरिमेंट नहीं करता है, दूसरा ग्रुप है जो एक्सपेरिमेंट करता है. बोथ ऑफ देम इमेजिन, बोथ ऑफ देम डिड्यूस एंड गेस, बट व्हाट इज द डिफरेंस? दैट वन ऑफ देम एक्सपेरिमेंट्स, द अदर डज नॉट. We said that the laws of nature are approximate, that we first find the wrong ones and then we find the right ones. Now, how can an experiment be wrong? So they're saying कि laws we expect, approximate ही होते हैं. We find the right ones only later on. First, how can experiment be wrong? First, in a trivial way. The apparatus can be faulty and you did not notice, but these things are easily fixed and checked back and forth. So without snatching at such minor things, how can the results of the experiment be wrong? Only by being inaccurate. So, they're saying, yes, experiments में गलतियां हो सकती हैं. Now, one thing can be when your apparatus is not correct, कुछ issues आपकी test tube में या आपके scale में कहीं भी, but then these things can be addressed, they can be checked. So the only other thing which can really let your experiments go wrong is being inaccurate. For example, now they're giving an example for it. The mass of an object never seems to change. A spinning top has the same weight as a still one. So a law was invented. Mass is constant, independent of speed. That law is now found to be incorrect. Mass is found to increase with velocity, but appreciable increase requires velocities near that of light. Right? तो अब ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हाउ यू कैन गो इनकरेक्ट, इनएक्यूरेट, योर एक्सपेरिमेंट्स कैन गो रॉन्ग बिकॉज यू आर इनएक्यूरेट. तो एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि जैसे कि देयर इज अ टॉप, and when it is spinning or when it is stable, both the cases the weight is same. तो फिर इसलिए लॉ आ गया, वो देखा कि अच्छा ऐसे होता है, तो फिर लॉ बन गया कि भाई स्पीड
से फर्क नहीं पड़ता, मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, बट देन लेटर ऑन इट वाज फाउंड कि ये लॉ तो इनकरेक्ट है, बट with change in velocity there is a possibility of change in mass, but that velocity has to be really high as that of light. So a true law is if an object moves with a speed of less than 100 miles a second, the mass is constant to within one part in a million. In some such approximate form, this is a correct law. एक approximate form में ये भी correct ही है. You know what? Because we are all studying approximations starting say. So in practice, one might think that the new law makes no significant difference. Well, yes and no. For ordinary seeds, we can certainly forget it and use a simple constant mass law as a good approximation. But for high speeds, वी आर रॉन्ग एंड द हायर द स्पीड द मोर रॉन्ग वी आर. तो वो कह रहे कि ठीक है, मतलब पहले उन्हें ये लगता था कि मास रिमेन्स द सेम. उन्होंने टॉप को देखा, स्पिनिंग और स्टेबल दोनों का सेम था, तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, बट लेटर इट वाज रियलाइज नो, विद चेंज इन वेलोसिटी देयर कैन बी चेंज इन मास. बट देन दे आर सेइंग कि वो वेलोसिटी बहुत हाई स्पीड पे होनी चाहिए, तो उसमें भी उन्होंने डिवाइड कर दिया कि अगर स्पीड जो है विच इज इफ इट इज लेस देन 100 माइल्स अ सेकेंड, तब तक ये जो हमारा पहले वाला लॉ था, मतलब इट इज एन अप्रोक्सीमेशन, तो वो इसमें सूटेबल है. और बाद में भी बहुत कम ही डिफरेंस होता है. ऑफ कोर्स जैसे जैसे ज्यादा स्पीड होती जाएगी डिफरेंस बढ़ता जाएगा, लेकिन कम स्पीड्स में इट इज ऑल राइट. देन दे आर सेइंग कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है. ठीक है, डिफरेंस इज नॉट दैट मच अप्रोक्सीमेशन से. द डिफरेंस इज नॉट दैट सिग्निफिकेंट, बट कम स्पीड्स पे. ज्यादा स्पीड है तो फिर डिफरेंस आता है. फाइनली एंड मोर इंटरेस्टिंगली, philosophically, we are completely wrong with the approximate law. Our entire picture of the world has to be altered, even though the mass changes only by a little bit. This is a very peculiar thing about philosophy or ideas behind the laws. Even a very small effect sometimes requires a profound changes to our ideas. तो जो हमने अभी देखा कि भाई जब स्पीड बहुत कम थी, जब स्पीड कम थी, ज्यादा नहीं थी, तो दोनों लॉज, एक तो लॉ है जो मतलब अप्रोक्सीमेशन है हमारी कि जो मास है वो कांस्टेंट रहता है, और जो दूसरा लॉ है विच इज एक्चुअली करेक्ट, उसके अकॉर्डिंग मास चेंजेस एज पर वेलोसिटी. तो जब स्पीड कम होती है तो ज्यादा अंतर नहीं होता, बहुत कम ही अंतर होता है. पर वो कह रहे हैं कि भले ही कम अंतर है, लेकिन फिलोसफी तो बिल्कुल ही अलग है ना. चाहे आप में अंतर, आप रिजल्ट सेम लिया है कैलकुलेशन करके, बट द फिलोसफी बिहाइंड दैट लॉ इज वेरी डिफरेंट. सो वो यही कह रहे हैं कि समटाइम्स फॉर वेरी लिटिल चेंजेस अ प्रोफाउंड चेंज इन फिलोसफी इज रिक्वायर्ड. बस थोड़ा सा चेंज होता है, लेकिन कई बार आपको पूरी फिलोसफी उसके लिए चेंज करनी पड़ती है, कि फिलोसफिकली तो गलत है ना, मतलब दैट्स नॉट द राइट वे. भले ही आप आंसर वैसे मैच कर दोगे, लेकिन दैट शुड नॉट बी, दैट्स नॉट द केस. व्हाट शुड इट बी? सो दैट इज व्हाई दे आर सेइंग कि समटाइम्स even for little changes, a profound change in philosophy is required. So this passage is over. Now let's start the questions. Which of the following options is definitely not an approximation to the complete truth? तो क्या सही नहीं है, मतलब approximation is very close to truth only. तो देखते हैं क्या सही नहीं है. I know that I know. आपको पता है कि आपको पता है, मतलब फॉर एग्जाम्पल, ओके लेट्स रीड ऑल दी ऑप्शंस, फिर एक एग्जाम्पल से सारे समझेंगे. आई नो दैट आई डू नॉट नो. आई नो व्हाट आई नो. आई नो व्हाट आई डू नॉट नो. आई नो दैट अदर्स डू नॉट. फॉर एग्जाम्पल, इन इकोनॉमिक्स यू हैव लॉ ऑफ डिमांड. ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड. आई नो दैट आई नो, मुझे पता है, मुझे इस लॉ के बारे में पता है, मतलब आई नो माई सेल्फ, मुझे पता है ना कि मुझे इस लॉ के बारे में इंफॉर्मेशन, हाँ मुझे लॉ आता है. या मुझे पता है कि मुझे इस लॉ के बारे में नहीं पता, मुझे नहीं पता लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है. मतलब समटाइम्स पीपल आज तुझे पता है ऐसे होता है, तो आप कहते हैं नहीं मुझे तो नहीं पता. तो आपको पता है कि आपको वो चीज नहीं पता. ठीक है, सो ये भी सही हो सकता है. आई नो वट आई नो. अब दैट और वट, देखो दो वर्ड्स यहाँ पर यूज हुए हैं, दैट और वट. दैट मतलब तब यूज हो रहे हैं मुझे पता है कि मुझे पता है, दैट इज यूज देयर. व्हेन आई से आई नो वट आई नो, मतलब क्या आपको पता है. जैसे क्या क्या चीजें आपको एक्चुअली ऐसे होता है, आपको पता है ये ऐसे होता है. एक तो है लॉ ऑफ डिमांड. आई नो दैट आई नो इट का मतलब होगा कि मुझे पता है लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है. आई नो व्हाट आई नो मतलब हाँ भाई एग्जैक्टली इसके अंदर क्या होता है कि जैसे प्राइस चेंज होता है तो डिमांड भी चेंज होती है, प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड बढ़ जाती है, प्राइस बढ़ गया तो डिमांड कम हो जाती है. मुझे पता है व्हाट आई नो, मुझे इस लॉ के अंदर क्या पता है. व्हाट मतलब क्या पता है आपको लॉ ऑफ डिमांड के लिए. ठीक है, तो आपको ये भी पता है कि मुझे एग्जैक्टली क्या पता है. वो लोग पूछते हैं ना क्या तुझे पता है वो कैसे होता है, तो हाँ मुझे पता है वो ये होता है. एक तो दो चीजें, एक तो मुझे पता है कि मुझे ये बारे में पता है, और एक है मुझे पता है इसके अंदर क्या होता है. तो वो जो मुझे पता है कि मुझे पता है वो दैट है, मुझे पता है इसके अंदर क्या होता है वो व्हाट है. अब आई नो दैट आई डू नॉट नो का मतलब मुझे पता है कि भाई ये चीज के बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है. इफ समबडी इज गिविंग मी सम फॉर्मूला,
मुझे नहीं पता, सो दैट इज ए आई नो आई डू नॉट नो दिस, बट व्हेन आई से आई नो व्हाट आई डू नॉट नो, व्हाट मतलब क्या? अब जैसे इसका मतलब होगा मुझे नहीं पता कि प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ जाती है और प्राइस ज्यादा होने से डिमांड कम हो जाती है, यही तो लॉ है। इफ यू नो दिस दैट मीन्स यू नो द लॉ। तो ये अपने आप ही कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया, ये हो ही नहीं सकता। आपको ये पता हो सकता है कि मुझे ये नहीं पता लॉ ऑफ डिमांड के अंदर क्या होता है, तो इसका मतलब होगा आई नो दैट आई डू नॉट नो इट, मुझे नहीं पता। बट व्हेन आई से आई नो व्हाट आई डू नॉट नो, मतलब उसके अंदर की आप पूरी बात बता रहे हो और फिर कह रहे हो मुझे नहीं पता, तो ये कॉन्ट्रडिक्टरी है। सो दैट इज वाई डेफिनेटली नॉट जो होगा वो ऑप्शन 4 होगा, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल। जो चीज आपको पता ही नहीं है आप उसको बस ये कह सकते हो ना मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन आप उस चीज की सारी डिटेल बता दो कि मुझे ये डिटेल्स नहीं पता। भाई पता ही, आप ये बता रहे हो डिटेल्स यही चीज होती है, देन हाउ कैन यू से यू डोंट नो इट? सो आंसर इज 4, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो आई नो दैट आई नो इट, मुझे पता है लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, मुझे पता नहीं है लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। मुझे पता है लॉ ऑफ डिमांड में ये चीजें होती है, मुझे नहीं पता लॉ ऑफ डिमांड में ये चीज होती है। अगर आपको पता है ये चीज होती है तो मतलब इट इज एज गुड एज सेइंग कि मुझे नहीं पता, अदरवाइज आपको कैसे पता होता? फिफ्थ, आई नो दैट अदर्स डू नॉट नो। हाँ, अदर्स दैट, हाँ आपको कुछ बोलते हैं ना मम्मी रहने दो आपको कुछ नहीं पता, सो दैट्स लाइक दिस। सो फोर्थ इज द आंसर बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल। यू कैन नॉट नो वट आई डू नॉट नो, आई कैन ओनली नो दैट, मुझे बस इतना पता होगा दैट आई डोंट नो इट। बट व्हाट मतलब अगर आपको पता है कि एग्जैक्टली exactly ये चीजें मुझे नहीं पता, मतलब आपको पता ही है। सो फोर्थ इज द आंसर। Which of the following? Okay, we are given two statements. Statement one, the mass of an object never seems to change. And statement two, mass is found to increase with velocity. ये जो दो चीजें हमने पढ़ी थी. Which of the following options cannot be concluded? Okay, which cannot be concluded? Both statements one and two are approximation to the complete truth. हाँ, क्योंकि देखो फर्स्ट वाली तो approximation है ही, क्योंकि बाद में हमने देखा जब वेलोसिटी लाइट की स्पीड के बराबर हो जाएगी तो मास चेंज होने लगता है, पर लेकिन बाकी स्पीड्स में वो अप्रोक्सीमेटली बिल्कुल ठीक आंसर ही देता है, तो इट इज फर्स्ट पे अप्रोक्सीमेशन है ही। और सेकंड पे अप्रोक्सीमेशन है बिकॉज कंप्लीट ट्रूथ सो फार एज वी नो, अभी तक हमें ये पता है, और जरूरी नहीं जो हमें पता है वो एग्जैक्टली ट्रूथ हो, तो वो भी अप्रोक्सीमेशन, यहाँ पर हमने कहा वो भी अप्रोक्सीमेशन मान ली जाती है। तो हाँ, बोथ द स्टेटमेंट्स को अप्रोक्सीमेशन मान सकते हो। फर्स्ट वाली तो है ही, सेकंड वाली को भी, क्योंकि एज फार एज वी नो इट, मे बी कल को कोई और लो हमें नया पता चल जाए तो उसके अभी तक तो अप्रोक्सीमेशन कह ही सकते हैं उसे। सेकंड, both statements one and two are complete truth so far as we know, so far as we know exactly what I told you। तो हाँ, सेम पॉइंट है, फन का जो मीनिंग है वही सेकंड का है, कि क्योंकि हमें जहां तक नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग ये ठीक है, दैट मीन्स इट्स ऑल्सो एन अप्रोक्सीमेशन, मे बी टुमारो आवर नॉलेज एक्सपैंड्स एंड देन वी कैन कम विद अनदर लॉ। स्टेटमेंट वन इज एन अप्रोक्सीमेशन टू द कंप्लीट ट्रूथ बट स्टेटमेंट टू इज कंप्लीट ट्रूथ। हाँ, अगर ये भी ठीक है, इस पॉइंट से भी इसको ऐसे देखा जा सकता है। अब मतलब इन दिस क्वेश्चन यू डोंट हैव टू सी कि सिर्फ एक ही सही हो सकता है बाकी नहीं है, क्योंकि हर एक को देखने का अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है, आपको वो सिलेक्ट करनी है जो हो ही नहीं सकता है। तो थर्ड भी ठीक है कि हाँ वो अप्रोक्सीमेशन है ही, क्योंकि अगर स्पीड कम है तब तक तो ठीक है, अदरवाइज ये लॉ तो नहीं होता ना। लॉ तो यही है कि मास विल चेंज व्हेन वेलोसिटी इज चेंजिंग, बट वेलोसिटी इज सपोज्ड टू बी वेरी हाई एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो कंप्लीट ट्रूथ तो यही है सेकंड स्टेटमेंट की मास चेंज होगा। फर्स्ट वाली अप्रोक्सीमेशन है तो ये भी ठीक है। फोर्थ, स्टेटमेंट वन रिवील्स दैट एक्सपेरिमेंटल फिजिस्ट हु इमेजिन, डिड्यूस एंड गेस आर फिजिकली रॉन्ग, आर फिलोसफिकली रॉन्ग। तो देखो यहाँ पर हमने पढ़ा था, और ये एक्सपेरिमेंटल फिजिस्ट ही तो थे, कि हमने देखा स्पिनिंग टॉप जब वो स्पिन कर रहा है तब भी उसका वही वेट है, जब वो स्टेबल रेस्ट पोजीशन में है तब भी उसका वही वेट है। तो एक्सपेरिमेंट से ही हमने आया था, तो मतलब एक्सपेरिमेंटल फिजिस्ट ही थे। तो जो उन्होंने इमेजिन या जो भी किया था वो बाद में फिलोसफिकली रॉन्ग प्रूव हो गया ना, कि नहीं ऐसा नहीं है, वेलोसिटी से मास चेंज होता है। सो दिस कैन ऑल्सो बी कंक्लूडेड कि जो उन लोगों ने, उन फिजिक्स एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स ने सोचा था, दैट वाज फिलोसफिकली रॉन्ग। यस, लेटर ऑन वी केम टू नो अबाउट दिस, कैसा नहीं होता है। Fifth, statement two shows that theoretical physics can pinpoint the shortcomings of experimental physics। ऐसे कहीं डायरेक्टली नहीं कहा हुआ है, बस ऐसे हमें बताया कि देयर इज अ डिविजन ऑफ लेबर। कुछ फिजिस्ट होते हैं जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ फिजिस्ट होते हैं जो एक्सपेरिमेंट नहीं करते, बट ऐसे एक दूसरे की वो कैसे शॉर्टकमिंग्स निकालते हैं या वो करते हैं वो पैसेज में कहीं भी गिवन नहीं है, राइट? सो व्हाट कैन नॉट बी कंक्लूडेड, fifth is the statement that cannot be concluded because the rest of the four can be concluded. So answer is fifth. Big Bang is a popular theory related to the origin of the universe. It states that the universe was the outcome of a Big Bang that released enormous energy. Which of the following is the most probable inference about the Big Bang theory? You know Big Bang theory, which is talking about the origin of universe. तो कौन सी statement most probable है?
बिग बैंग थ्योरी वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय एक्सपेरिमेंटल फिजिस्ट। एक्सपेरिमेंटल फिजिस्ट क्या होते हैं? जो पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं फिर वो कोई आपको इमेजिनेशन या लॉ पे आएंगे। अब बिग बैंग के टाइम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता था। नोबडी ऑफ अस वाज सर्वाइविंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो कौन से फिजिस्ट थे जो उस टाइम एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे? नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल, इट कुड नॉट बी प्रपोज्ड बाय एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट। तो वन इज आउट। बिग बैंग थ्योरी वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय थ्योरेटिकल फिजिस्ट, ये करेक्ट हो सकता है क्योंकि उस टाइम बिग बैंग के टाइम कोई था ही नहीं जो एक्सपेरिमेंट करता। तो थ्योरेटिकल वाले ही, मतलब जो एक्सपेरिमेंट नहीं करते वही इसके बारे में कुछ इमेजिनेशन या कुछ गेस वर्क करेंगे। एक्सपेरिमेंट तो पॉसिबल ही नहीं है, तो मे बी स्टेटमेंट टू इज ऑलराइट, इसको एलिमिनेट नहीं कर रहे हैं। बिग बैंग थ्योरी वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय एक्सपेरिमेंटल फिजिस्ट, ये यहीं पे मतलब आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है बिकॉज एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स नहीं थी पॉसिबल। बिग बैंग के टाइम कोई था ही नहीं, तो कौन सा एक्सपेरिमेंट करता जब कोई कोई देयर वर नो ह्यूमंस दैट टाइम, सो देयर वाज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट। सो फर्स्ट और थर्ड हमने सिर्फ इसीलिए एलिमिनेट कर दिया बिकॉज दे आर टॉकिंग अबाउट एक्सपेरिमेंट हैपनिंग एट द टाइम ऑफ बिग बैंग बाय सम साइंटिस्ट। नो साइंटिस्ट वाज अवेलेबल दैट टाइम। बट सेकंड क्या कह रहे हैं कि थ्योरेटिकली हमने करा होगा, एक्सपेरिमेंटली नहीं। फोर्थ, फिलोसफर्स गॉट द बिग बैंग थ्योरी रॉन्ग। अब फिलोसफर्स की बात नहीं हो रही, और यहाँ पे जो भी हमने फिलोसफी करी है वो साइंटिफिक फिलोसफी की बात करी है, उसके पीछे की लॉ की। हम वो जनरल फिलोसफर्स की बात नहीं कर रहे हैं, दे गॉट द बिग बैंग थ्योरी रॉन्ग। पैसेज में मतलब हम इस बारे में ऐसी कोई बात नहीं कर रहे हैं, सो दिस इज आउट। बिग बैंग थ्योरी इज नॉट एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ द कंप्लीट ट्रूथ, व्हाट द पैसेज इज सेइंग, कि सब कुछ जो हमें पता है दिस इज अप्रोक्सीमेशन ओनली। वाई? बिकॉज या तो हमें कोई पार्ट की नॉलेज है, या अगर हमें सब कुछ पता भी है तो वो हमारा ट्रूथ है, यू नो, एज फार एज वी नो। इस पॉइंट पे जो हमारी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग जो ट्रूथ है वो लिमिटेड हो सकता है, बिकॉज टुमारो आवर नॉलेज कैन बी समथिंग एल्स, वी कैन डिस्कवर न्यू थिंग्स, इट कैन बी डिफरेंट। बट टुडे वट एवर नॉलेज वी हैव उसके अकॉर्डिंग वो सच है, तो वो लिमिटेड हो सकती है, तो इसलिए वो अप्रोक्सीमेशन हो ही सकती है। एवरीथिंग कैन बी अप्रोक्सीमेशन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में गिवन है, तो फिफ्थ तो नहीं होगा। सो आंसर इज टू, कि ये जो बिग बैंग थ्योरी है ये पहली बार थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट ने ही प्रपोज की होगी। सो दिस इज डेफिनेटली करेक्ट, यू नो, मोस्ट प्रॉब्लम दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू बी ट्रू। सो आंसर इज सेकंड। So I hope this passage was clear to you. Advances in economic theory in the 1970s and 1980s illuminated the limits of market. They showed that unfettered markets do not lead to economic efficiency whenever information is imperfect or markets are missing. For instance, good insurance market to cover the key risks confronting individuals. Now, you know, earlier in economics, the classical thought used to be that markets can themselves, you know, correct all the wrongs in the economy, अपने आप equilibrium आ जाएगा, if there are issues अपने आप forces of demand, forces of supply, they will adjust and you will get the equilibrium, किसी को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, markets will automatically adjust themselves. But you know, after some time it was realized, especially after the Great Depression, that markets do not correct themselves automatically. State intervention की जरूरत होती है। तो you know, this is actually talking about that only, कि there are limits, मार्केट की भी लिमिट्स है, मार्केट अपने आप ही सब कुछ नहीं कर सकती, मार्केट फेलियर भी होता है। एंड यू नो, फॉर एग्जाम्पल इंफॉर्मेशन, अब यू नो व्हाई वी हैड दैट ओरिजिनल थ्योरी दैट मार्केट्स कैन करेक्ट देमसेल्व्स, उस थ्योरी की कुछ अजम्पशंस थी, और वो थ्योरी अब यू नो इट इट जस्ट फेल्ड। व्हाई? बिकॉज वो अजम्पशंस रियल लाइफ में अब होती ही नहीं है। उसकी एक अजम्पशन थी कि मार्केट्स जो है परफेक्ट है, इंफॉर्मेशन जो है वो परफेक्ट है। व्हाट डू यू मीन बाय इंफॉर्मेशन बीइंग परफेक्ट? मतलब सबके पास इक्वल इंफॉर्मेशन है, बट इन रियलिटी दैट डजंट हैपन। सम पीपल हैव मोर इंफॉर्मेशन और दे गेट इंफॉर्मेशन अर्लियर इन कंपैरिजन टू अदर पीपल। फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ स्टॉक मार्केट, सो दे आर एबल टू मेक मोर प्रॉफिट्स, and meanwhile the other people, when they come to know, that time profits are vanished. सो या तो इन्फॉर्मेशन सबके पास बराबर नहीं होती है, या कुछ मार्केट्स मिसिंग होती है, जैसे कि गुड्स इंश्योरेंस मार्केट। इनफैक्ट इवन टुडे इन इंडिया insurance penetration for this would be really less. And information is always imperfect and markets are always incomplete. Nor do markets by themselves necessarily lead to economic efficiencies when the task of a country is to absorb new technology to close the knowledge gap, a central feature of development. अब जैसे नई टेक्नोलॉजी भी आती है, then also markets can't, you know, just correct everything on their own. For example, India maybe when we have COVID, that time we experienced digital divide, because there were certain students who did not have access to laptops, so they were not able to watch their classes, but other students, they were having laptops, so they could. And then there was a gap between their growth. Similarly, you know, whenever there is new technology, everybody will not have access to it at the same time, so that will lead to gap. तब government की जरूरत पड़ती है. Today, most academic economists agree that markets themselves do not lead to efficiency. अपने आप markets नहीं ठीक कर सकते. They do not lead to efficiency. The question is whether government can improve matters.
सो अब क्या गवर्नमेंट एफिशिएंसी ला सकती है? नहीं, मार्केट्स तो अपने आप नहीं ला सकते, बट क्या गवर्नमेंट ला सकती है? नहीं, लेट्स इट्स नॉट क्लियर, लेट्स सी. Why it is difficult for economists to perform experiments to test their theories as a chemist or physicist might. The world provides a vast array of natural experiments as dozens of countries try different strategies. तो जैसे केमिस्ट्री में या फिजिक्स में यू हैव लैब्स, वहां पर एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है जहां पर आप सर्टेन वेरिएबल्स को कंट्रोल करते हो या एनवायरमेंटल कंडीशंस को कंट्रोल करते हो, फिर उसके रिजल्ट्स देखते हो. इकोनॉमी में तो ये पॉसिबल ही नहीं है. यू कांट हैव सच एक्सपेरिमेंट्स. ऐसे कोई लैब थोड़ी ना होती है. बट डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट स्ट्रैटेजीज अप्लाई करती है, तो उनके रिजल्ट से हमें कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चल जाता है. वी कैन एक्सपेरिमेंट इट, by seeing their results. Unfortunately, because each country differs in its history and circumstances and in myriad of details in the policies and details do matter, it is often difficult to get a clear interpretation. But the issue is कि हर इकोनॉमी, हर कंट्री एक दूसरे से इतनी डिफरेंट होती है. बी इट अबाउट इट्स पॉलिटी, कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसी है, गवर्नमेंट का एटीट्यूड क्या है. समटाइम्स गवर्नमेंट कैन बी लेफ्टिस्ट, समटाइम्स द गवर्नमेंट कैन बी राइटिस्ट. उनकी पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसीज भी अलग होती है. फिर नेचुरल रिसोर्सेज अलग अलग होते हैं. सो समटाइम्स ह्यूमन रिसोर्सेज आर वेरी डिफरेंट. हिस्टोरिकल फैक्टर्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल इंडिया में जैसे कलोनियलिज्म की वजह से हमारी काफी इकोनॉमी में फर्क आया है. सो देर आर सो मेनी फैक्टर्स कि आप कोई जनरल रूल बना ही नहीं सकते. जैसे साइंस में तो आप you conduct experiments and then you get a general rule. बट इकोनॉमी में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज हर कंट्री इतनी अलग है कि आप कुछ एक जनरल रूल बना ही नहीं सकते. इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ क्लियर इंटरप्रिटेशन ऑफ इट. यू विल नेवर गेट. एक्सपेरिमेंट वो कह रहे हैं कि होते हैं, बट कोई फायदा नहीं है, क्योंकि क्लियर इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकती. एवरीबडी इज सो डिफरेंट. What is clear, however, is that there have been marked differences in performance, that the most successful countries have been those in Asia, and that in most of the Asian countries, government played a very active role. As we look more carefully at the effects of particular policies, these conclusions are reinforced. There is a remarkable congruence between what economic theory says government should do and what the East Asian governments actually did. तो ये अब एग्जाम्पल दे रही है ईस्ट एशियन कंट्रीज का, where गवर्नमेंट के रोल की वजह से they were able to become developed. And the best example could be Singapore, because of their, one specific prime minister. Singapore, earlier it was a third world country, now it is a developed country. So so they're giving an example, like they're telling us through their example that how government rule there could bring development. By the same token, the economic theory is based on imperfect information and incomplete risk markets that predicted that the free flow of short-term capital, a key feature of market fundamentalist policies, would produce not growth but instability, have also been borne out. तो जैसे हमने पहले भी किया कि market forces like short-term capital है. Capital आ रहे हैं, तो we would think that there will be a lot of growth and development, but in reality it's not that it will produce growth, but rather it will produce instability. For example, India में we have foreign institutional investments या foreign portfolio investment जिसे हम कह देते हैं. Now they bring a lot of instability because it's an investment in shares. तो कभी भी इन्वेस्ट कर देते हैं, कभी भी विड्रॉ कर देते हैं. यहाँ स्टॉक मार्केट्स वोलेटाइल हो जाती हैं. एफडीआई इज नॉट दैट, एफडीआई इज नॉट रियली शॉर्ट टर्म कैपिटल, इट इज फॉर लॉन्ग टर्म. तो एफडीआई में तो वो प्रॉपर फिजिकल या कोर एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो इतनी जल्दी विड्रॉ नहीं हो सकती. बट एफआईआई या एफपीआई ये तो शेयर्स में होते हैं, एकदम से विड्रॉ कर लेते हैं. यहाँ पे बहुत इंस्टेबिलिटी होती है. तो इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग ग्रोथ इट लीड्स टू प्रॉब्लम्स. So let's see the questions. Whether government can improve matters. Here matters indicates which sentence we read this. Yeah. Today, most academic economists agree that markets themselves do not lead to efficiency. The question is whether government can improve matters. अब इधर हम efficiency की बात करें ना, कि भाई markets तो अपने आप efficiency ला नहीं सकती, तो देखते हैं government ला सकती है या नहीं. तो efficiency की ही बात हो रही थी स्लाइड में, तो डायरेक्ट ही गिवन है. सेकंड, इंफॉर्मेशन इम्परफेक्टनेस. इंफॉर्मेशन इम्परफेक्टनेस की बात नहीं हो रही थी कि भाई गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन इम्परफेक्टनेस को ठीक कर देगी. वी वर नॉट टॉकिंग, ये तो बहुत पहले हमने बात की थी. यहाँ पर एफिशिएंसी की बात कर रहे थे, इसकी बात नहीं कर रहे थे. नॉलेज गैप की बात नहीं हो रही है. गुड इंश्योरेंस मार्केट नहीं, वो यहाँ पे हमने बात की थी. ये वाली जो गवर्नमेंट कैन इंप्रूव द मैटर्स, इसके बारे में नहीं है. और इनकम्प्लीट रिस्क मार्केट भी नहीं. इनफैक्ट ये जो चार चीजें हैं, इनके थ्रू, इनको सही करके भी तो अल्टीमेटली क्या होता है, इकोनॉमिक एफिशिएंसी. इनको भी क्यों करेक्ट करते हैं, इनको भी क्यों इंप्रूव करते हैं? अल्टीमेटली गोल तो इकोनॉमिक एफिशिएंसी ही है ना. और यहाँ पर गिवन है that it do not lead to efficiency. The question is whether government can improve matters. So it is directly talking about economic efficiency. Answer is 1. Which of the following options cannot be inferred from the above passage? Free flow of short-term capital might fail to ensure economic growth. Correct. ये तो infer किया जा सकता है, हमें चाहिए cannot be inferred.
यहाँ पे हमने लास्ट में पढ़ा था, एंड आई गिव द एग्जांपल ऑफ एफआईआईस की कैसे वो एकदम से शेयर्स में वैसे विड्रॉ कर लेते हैं तो हमारी स्टॉक मार्केट यहाँ पर बहुत वॉलेटाइल हो जाती है. इट रियली वुड नॉट प्रोड्यूस ग्रोथ बट इंस्टेबिलिटी. सो ये तो इन्फर हो रहा है. इंश्योरेंस मार्केट इज अ प्रूफ दैट मार्केट्स बाय देमसेल्फ डू नॉट लीड टू एफिशिएंसी. हाँ, इंश्योरेंस मार्केट्स बिकॉज इनकम्प्लीट है तो देयर इज नो एफिशिएंसी. करेक्ट, इन्फर कर रहे हैं. इट इज डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट द सक्सेस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ एशियन कंट्रीज. यहाँ पर एक मतलब एशियन कंट्रीज का सभी के बारे में किया है कि यू इट इज डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट पॉलिसी ऑफ एनी कंट्री. डिटेल्स ऑफ पॉलिसीज आप किसी का भी इंटरप्रेट नहीं कर सकते. इनकी बात तो छोड़ो, ये सही है. फिर टेक्नोलॉजी कैन इम्पीड मार्केट एफिशिएंसी. करेक्ट, जो हमने नॉलेज गैप में पढ़ा था कि टेक्नोलॉजी से क्या होता है, इनइक्वालिटीज बढ़ जाती है. जिनको टेक्नोलॉजी के पैसे थे वो उसमें मतलब दे गॉट एक्सेस, दे यूज्ड इट, इंक्रीज देयर इनकम. देयर वर पीपल हु कुड नॉट यूज इट, दे बिकेम पुअरर. तो मार्केट एफिशिएंसी हो ही नहीं रही, इनइक्वालिटीज बढ़ती जा रही है. So this also, can be inferred. सही है. State intervention and imperfect information can never go hand in hand. अब ये पैसेज में नहीं लिखा एंड कैन नेवर गो. ऐसे सेंटेंसेस जो एक्सट्रीम होते हैं ना उनको बहुत ध्यान से पढ़ा करो. बहुत बार हो सकता है वैसे ही वाले सेंटेंसेस हो इनकरेक्ट, क्योंकि रियलिटी इज नेवर दैट एक्सट्रीम. सो हो सकता है कि स्टेट इंटरवेंशन और इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन मतलब सबके पास एक जैसी इन्फॉर्मेशन नहीं है, और स्टेट इंटरवेंशन हो रहा है तो मतलब इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है. मतलब स्टेट इंटरवेंशन एक तरीके का हो सकता है कि सबको परफेक्ट इन्फॉर्मेशन मिले, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में स्टेट इंटरवेंशन है इकोनॉमी में, कंप्लीटली मार्केट फोर्सेस पर नहीं छोड़ रही, तब भी तो इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है. इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं होती है क्या? व्हाट इज इनसाइडर ट्रेडिंग? सम पीपल गेट इन्फॉर्मेशन बिफोर इट इज मेड पब्लिक, तो वो इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन है. तो हुई स्टेट इंटरवेंशन है फिर भी इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन हो गई. तो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है. ऐसे कोई यहाँ पर पैसेज में कोई क्लियरली ऐसे नहीं बोला हुआ है. सो कैन नेवर गो इन हैंड, ये पैसेज में कहीं गिवन नहीं है. सो समथिंग विच कैन नॉट बी इन्फर्ड, ये होगी फिफ्थ स्टेटमेंट. दिस इज योर आंसर. आंसर इज फिफ्थ, दैट कैन नेवर गो हैंड इन हैंड. मे बी हो सकती है, मे बी नहीं हो सकती. ऐसे कोई एक्सट्रीमली कहीं पे लाइन तो डायरेक्टली नहीं दी हुई पैसेज में. आंसर इज फाइव. नेक्स्ट, which of the following statements best captures the essence of the two paragraphs in the above passage? Okay, paragraph 1 and paragraph 2 are parallel arguments that are unrelated. No, unrelated तो नहीं है, दोनों related ही हैं. मार्केट्स के बारे में बात हो रही है, so this is wrong. Para 1, this should be 2. Para 1 describes markets in general, whereas Para 2 describes market failures in Asian economies in particular. Asian economies की तो तारीफ की गई है, failures की बात नहीं की गई है. So this is against the passage. Third, paragraph 1 explains why markets fail. Correct. Why they fail? क्योंकि इंफॉर्मेशन परफेक्ट नहीं होती है, कुछ मार्केट्स मिसिंग होती है, टेक्नोलॉजिकल गैप, टेक्नोलॉजी की वजह से एक नॉलेज गैप होता है. तो बहुत सारे रीजंस हैं व्हाई व्हाई मार्केट्स फेल. बहुत सारे रीजंस हमें दिए हुए. करेक्ट. एंड पैरा 2 spells out why market based economic theories fail to explain success of Asian economies. हाँ, तो हमने पढ़ा था कि एशियन इकोनॉमीज में गवर्नमेंट प्लेड अ वेरी एक्टिव रोल और उसकी वजह से वो सक्सेसफुल हुई हैं, मार्केट की वजह से नहीं हुई है. तो मार्केट की थ्योरी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी, क्योंकि मार्केट के अकॉर्डिंग तो सब कुछ मार्केट को करना चाहिए, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए. बट रियलिटी में तो गवर्नमेंट की वजह से सक्सेसफुल हुई है ना, तो मार्केट वाली थ्योरी तो इस केस में फेल ही हो जाएगी उनकी सक्सेस एक्सप्लेन करने के लिए. ठीक है. और हम यहाँ पर पढ़ भी यही रहे हैं कि कैसे मतलब साउथ एशियन का ये ईस्ट एशियन कंट्रीज का एग्जाम्पल लेके कि हाउ गवर्नमेंट रोल एक्चुअली इम्प्रूव द परफॉर्मेंस. और सिर्फ मार्केट बेस्ड इकोनॉमीज जो होती हैं, जो मार्केट पे बेस्ड होती हैं, तो फिर उसका भी साइड इफेक्ट है, शॉर्ट टर्म कैपिटल, ये सब एक्सप्लेन किया कि कैसे वो नहीं सक्सेसफुल होती हैं. पैरा 1 raises question and para 2 answers it. Now this is not incorrect in that sense. Some of you can think कि ये भी तो आंसर हो सकता था, क्योंकि is whether government can improve the matters. ये क्वेश्चन समझ के बाद में कहेंगे कि हाँ देखो गवर्नमेंट ने इम्प्रूव कर दिया. बट दिस इज नॉट अगर मुझे थर्ड और दिस शुड बी आइडियली फोर्थ एंड द लास्ट वन शुड बी फिफ्थ. तो थर्ड और फोर्थ में से पिक करना पड़ी, तो फोर्थ इज नॉट दैट गुड. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ द क्वेश्चन इज वेदर गवर्नमेंट इंप्रूव्स मैटर, ये एक क्वेश्चन की तरह नहीं बोला. क्वेश्चन मार्क कहाँ दिया हुआ है इसमें? इट्स नॉट रियली लाइक अ क्वेश्चन. मतलब वो क्वेश्चन वाली टोन नहीं है, बट लाइक लेट्स सी गवर्नमेंट ठीक कर सकती है, मतलब अनसर्टेनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ है, नॉट रियली अ क्वेश्चन. और पैरा 1 में सिर्फ एक ऐसे लाइन है, पूरा जो बाकी सब कुछ है वो तो मार्केट के फेल होने से ही है ना. ये तो लास्ट में भी यही बात है कि देखो मार्केट तो अपने आप को सही से नहीं एफिशिएंसी दिला सकती है, देखते हैं गवर्नमेंट कर सकती है नहीं. इट्स नॉट रियली अ क्वेश्चन. मतलब मेन बात जो हो रही है, अगर इफ आई हैव टू पिक कि
पहला पैरा व्हाई मार्केट्स फेल है या रेजेस अ क्वेश्चन, देन व्हाई मार्केट फेल वुड बी अ बेटर थिंग, बिकॉज द मेन थिंग इज दैट वो जो लास्ट का क्वेश्चन है वो भी उसी सेंस से बोला हुआ है कि मार्केट्स से तो भाई हो नहीं रहा है, मार्केट्स तो फेल हो गई है ना। और पैरा टू इज आंसर्स इट, पैरा टू इज नॉट रियली आंसरिंग इट। स्टार्टिंग में तो वो यही बोलते हैं कि कोई भी एफर्ट्स करे चाहे पॉलिसीज करे, आप कभी बता ही नहीं सकते वो सक्सेसफुल हुई है या नहीं, क्योंकि किसी चीज को इंटरप्रेट करना पॉसिबल ही नहीं। इट इज डिफिकल्ट टू गेट क्लियर इंटरप्रिटेशन बिकॉज एवरीथिंग इज डिफरेंट, एवरी इकोनॉमी इज डिफरेंट। गवर्नमेंट ने ए कंट्री में कोई स्टेप लिया वहां पे सक्सेसफुल हो गया, कंट्री बी की गवर्नमेंट ने भी सेम स्टेप लिया वहां पर वो सक्सेसफुल नहीं होगा। तो यू you नो ये उन्होंने यही बोला है कि देर इज नो वे टू गेट अ क्लियर इंटरप्रिटेशन। तो बहुत अच्छी तरह से आंसर नहीं हो रहा था क्वेश्चन, ऐसे आंसर हो रहा होता तो ना इस तरीके की टोन होती इस पैसेज इस पैराग्राफ की कि yes, government cannot lead to cannot create efficiency, or government can create efficiency like this. एक एग्जाम्पल की तरह उन्होंने बताया है कि ये ठीक है, लेकिन वो मेन आप ऐसे नहीं कह सकते कि पूरा पैरा इसमें आंसर के लिए है। इसमें तो मार्केट का ही फेलियर दिखाया होगा और फिर एशियन इकोनॉमीज को एक्सप्लेन करते हुए। तो इफ आई हैव टू चूज बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड विल बी बेटर ऑप्शन बिकॉज इट इज मोर स्पेसिफिक, मोर कोर। फोर्थ मतलब क्वेश्चन है बट वो मेन क्वेश्चन नहीं है कि सारा क्वेश्चन ये पैरा वन सारा क्वेश्चन नहीं, मतलब मेन एसेंस है, मेन एसेंस है, कोर थीम है, वो नहीं है। इट इज अबाउट व्हाई मार्केट्स फेल, सो फोर्थ कैन विल बी एलिमिनेटेड। फिफ्थ, पैरा वन states an economic theory and पैरा टू cites a natural experiment to disapprove it। कोई इकोनॉमिक थ्योरी नहीं बताई हुई है। आई एक्सप्लेन यू कि यस इट्स अ थ्योरी कि कैसे मार्केट्स अपने आप में, वो थ्योरी बताई नहीं हुई है। मेन चीजें बताई कि मार्केट्स क्यों नहीं अपने आप काम कर सकती हैं। तो मेनली वो सिर्फ इसी पार्ट में दिया हुआ है कि वाई मार्केट्स फेल, सिर्फ यही बात बताई हुई है। लिमिट्स ऑफ द मार्केट, इम्परफेक्ट होती है इंफॉर्मेशन या मार्केट मिसिंग होती है, नॉलेज गैप हो जाता है। ओनली इन थर्ड ऑप्शन वी आर गेटिंग दिस राइट। और सेकंड वाले भी ये बोल रहे कि मार्केट कैसे फेल हो रही है क्योंकि वहां पर तो गवर्नमेंट ने एफर्ट्स किए। दिस इज मोर ब्रॉड बेस कि मतलब सारी चीजें इसमें पूरे पैरा इस लाइन में कवर हो रहा है कि कैसे मार्केट वाली इकोनॉमीज, मतलब मार्केट थ्योरी फेल है, गवर्नमेंट ने एफर्ट्स किए। तो फोर्थ इज वेरी स्पेसिफिक, एक लास्ट लाइन को आप पूरी थीम बना दोगे यहाँ पे, विल नॉट बी द मेन थिंग। सो आंसर इज थ्री फॉर दिस। इसका आंसर है why markets fail and why market based economies theory fail to explain because of government efforts. So this passage is over. I hope you would have understood it. So now these are another questions of the BA portion of ZA 2016. So let's read them. Oinos, I can comprehend you thus far that certain operations of what we term nature or the natural laws will under certain conditions give rise to that which has all the appearance of creation. Shortly before the final overthrow of the earth, there were, I well remember, many very successful experiments in what some philosophers were weak enough to dominate the creation of animalcula. So this person is talking about some nature laws that, when we talk about certain operations, which they term as of nature, and then there will be something that will have the appearance of the creation, and then they're talking about how Earth was overthrown and something like that. Agathos, the cases of which you speak were in fact instances of the secondary creation and of the only species of creation which has ever been since the first word spoke into existence, the first law. So again, this person is telling the first person is telling you certain cases, तो second वाला उसको ही बोल रहा है कि जो भी cases बोले थे, these are cases of secondary creation, and these were the only species of creation जो first word, that word became the law, the first word into existence of first law, तो उस time वो थे. So which of the following options cannot be definitely inferred based on the above conversation? तो कोई conversation है उस पे, मतलब what cannot be inferred? Agathos was explaining something related to creation. Yes, something was about creation that that there will be something that has all the appearance of creation. तो ये तो infer किया जा सकता है, बताना which cannot be inferred. Second, at the time of conversation there was nothing called earth, but यहाँ पर लिखा हुआ है that no shortly before the final overthrow of the earth. So मतलब ये option भी नहीं है because ये तो directly infer हो रहा है. Third, the creation of animalculae is a natural law. Yes, because now they're talking about that that they are the very successful experiments of some philosopher were mean enough to dominate the creation of animalcula. तो मतलब philosophers के law नहीं है, ये natural law, natural creation है जो animalculae की creation है, that is natural, not philosophers, because philosophers were too weak for that.
सो ये भी इन्फर किया जा सकता है, तो ये भी आंसर नहीं है। नेचुरल लॉज आर क्रिएशंस ऑफ फिलोसफर्स, ये कहीं पे नहीं लिखा है। इनफैक्ट यहाँ पे ये लिखा है कि फिलोसफर्स वर वीक, दे वर टू वीक, दे वर वीक इनफ टू डोमिनेट समथिंग, क्रिएशन ऑफ एनिमल थियरी। दैट मीन्स ये नेचुरल लॉज थे और फिलोसफर्स के नहीं थे, बिकॉज फिलोसफर्स वर टू वीक फॉर इट। सो डेफिनेटली ये तो पैसेज में कहीं भी, ये जो कॉन्वर्सेशन दी हुई है इसमें कहीं नहीं है। फिफ्थ, लॉ इज अ स्पोकन वर्ड, ये डायरेक्टली यहाँ पर लाइन गिवन है, द फर्स्ट वर्ड स्पोक इन टू एक्सिस्टेंस द फर्स्ट लॉ, तो वर्ड से ही लॉ आया था, बिकॉज द फर्स्ट वर्ड दैट वाज स्पोकन लेफ्ट टू द फर्स्ट लॉ। तो जो 5 थिंग्स आर बीइंग गिवन टू अस, जिसमें से कोई पैसेज या कॉन्वर्सेशन में नहीं गिवन है, फर्स्ट इज डायरेक्टली गिवन, second is directly given, third is given, fifth is given, fourth is nowhere given कि natural laws are creation of philosophers. No, philosophers were too weak, तो वो natural laws ही थे and not philosophers की creation. So answer is 4. Next, there are two statements. Offices and positions for the marginalized sections should be open to those with greater savings among them. Okay. Second is saying offices and positions must be open to everyone based on the principle of fair opportunity. Fair opportunity means everybody should have the access to opportunity, everybody should get the chance. So, which of the following is true? Statement 1 assumes that the marginalized sections are incapable of saving. ऐसा नहीं है, स्टेटमेंट 1 में बस एक है कि जो जो पोजीशंस और ऑफिसेज है फॉर मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस, दे शुड बी ओपन फॉर दोज जिनके पास ज्यादा सेविंग्स है। बट ऐसा कहीं नहीं अज्यूम किया कि वो सेविंग कर नहीं सकते या दे आर इनकेपेबल ऑफ सेविंग। नो, इट्स जस्ट दैट जिनकी ज्यादा सेविंग है उन्हें ऑफिस मिलना चाहिए। सो ये तो बिल्कुल भी लिंक नहीं है। सेकंड, स्टेटमेंट 2 assumes that all citizens are equally exposed to opportunities. सी स्टेटमेंट 2 ये सजेशन दे रही है कि सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, तो हाउ कैन इट अज्यूम कि सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है? एब्सोल्युटली इररिलेवेंट, क्योंकि यही तो सजेशन, अगर यही वो अज्यूम किया होता तो सजेशन ये थोड़ी होता, सजेशन तो वही होगा ना जो नहीं है, तो बिल्कुल ऑपोजिट है। 2 इज आउट। थर्ड, स्टेटमेंट 2 कॉन्ट्रडिक्ट्स मेरिटोक्रेसी। स्टेटमेंट 2 इज ओनली सेइंग कि सबके पास फेयर अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, एवरीबडी शुड गेट द चांस। हाउ इट अफेक्ट्स मेरिटोक्रेसी? मेरिटोक्रेसी मीन्स व्हाट, कि एवरीबडी शुड बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट ये कह रही है सबको चांस मिलना चाहिए, उसके बाद जो मेरिट, जिसके पास मेरिट होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, बट दैट डजंट मीन कि वो मेरिट के अगेंस्ट है। इट इज ओनली सेइंग सबको चांस मिलना चाहिए, सो इट इज नॉट अगेंस्ट मेरिट, सो वी कैन एलिमिनेट दिस आल्सो। स्टेटमेंट सेकंड assume that all citizens are equally intelligent। हाँ, जो ये कहते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ पीपल हु सपोर्ट दिस कि सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, इसका मतलब यही होता है कि everybody is not getting opportunity now. There can be two groups of people. A is getting opportunity, but B group is not getting opportunity. हो सकता है B में भी बहुत talented लोग हैं, लेकिन opportunity ही नहीं मिलती। We see many poor children who may have great talent, but they don't get chance. तो जब हम कहते हैं कि सबको चांस मिलना चाहिए, इसका मतलब सब में टैलेंट है, तभी तो हम कह रहे हैं। अगर उन लोगों में टैलेंट नहीं होता तो हम क्यों कहते हैं कि उनको भी चांस दो? इसका मतलब वी अज्यूम कि उन लोगों में भी टैलेंटेड लोग हैं। इट अज्यूम्स दैट ऑल सिटीजंस आर इक्वली इंटेलिजेंट, तभी तो सबको चांस मिलना चाहिए। अगर नहीं होते तो हम क्यों कहते हैं कि उनको भी चांस दो? बट क्योंकि वो इंटेलिजेंट है और उनको चांस नहीं मिल पाता है, इसलिए चांस मिलना चाहिए। Statement 1 assumes that marginalized sections always depend on subsidies. Subsidies की कोई बात ही नहीं हुई है दोनों statements. It is absolutely out of scope. तो first गलत था, incapable of saving. Second is wrong क्योंकि ये तो बिल्कुल ही statement के opposite था. Third भी because it's not affecting meritocracy. Fifth भी out of scope है. So answer is fourth. That all citizens are equally intelligent. That is why we can say कि सबको chance मिलना चाहिए. This season will pass. The Prime Minister may not win Lok Sabha elections, or she may. She may not continue as Prime Minister, or she may. The country will survive whatever the texture of politics in this decade or the next. तो अब ये लाइन हमें यही बता रही है कि चाहे कुछ भी हो, वो इलेक्शन जीते या ना जीते, वही पर्सन प्राइम मिनिस्टर बने ना बने, nothing would be affected. Country will still survive. So which of the following, if true, will best reinforce the author's view? Okay, the survival of any prime minister is dependent on country's economic growth. Nowhere we have talked about economy here. बस ये बोल रहे हैं चाहे कुछ भी हो कंट्री सरवाइव करेगी। तो ये कहीं से नहीं बोला गया कि प्राइम मिनिस्टर तो ग्रोथ पे डिपेंडेंट है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, दिस इज आउट। द कंट्री हैज अ यंग वाइब्रेंट यंग वर्किंग पॉपुलेशन। अगेन वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वर्किंग पॉपुलेशन, का कोई लिंक ही नहीं है यहाँ पर कि वर्किंग पॉपुलेशन में तो ज्यादा पैसे होंगे या कुछ भी, ऐसा नहीं है। दिस इज अगेन समथिंग नॉट कनेक्टेड। थर्ड, the survival of the country depends on a dynamic growth oriented prime minister, not on the texture of politics. अगर ऐसा होता ना कि it is dependent on growth oriented prime minister, तो ऊपर ऐसा लिखा, ये लाइन जो कहती कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर बने फर्क नहीं पड़ता,
तो वो वैसे नहीं होता. थर्ड इज कॉन्ट्रोडिक्टिंग द स्टेटमेंट. स्टेटमेंट इज दैट वी डोंट केयर, कोई भी गवर्नमेंट आए, कोई भी पीएम बने, नथिंग विल बी चेंज, कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला है. अगर ऐसा होता कि कंट्री डिपेंडेंट है ग्रोथ ओरिएंटेड प्राइम मिनिस्टर पे, तो ऊपर ऐसी बात नहीं कही होती. इट इज कॉन्ट्रोडिक्टिंग दैट फैक्ट. सो थर्ड इज आउट. द प्रीवियस सीजन हैड आल्सो विटनेस सिमिलर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी. नाउ दिस इज सेइंग कि पहले भी ऐसी ही पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी. तो मे भी दिस इज ऑल्सो रेलेवेंट टू सम एक्सटेंट, कि जो हम इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल पा रहे हैं कि कोई भी इलेक्शन जीते या ना जीते, कोई भी पीएम आए या ना आए, द कंट्री विल सर्वाइव. इसका मतलब इन पास्ट ऑल्सो दैट थिंग वुड हैव हैपेंड, और उसी के बेसिस पे प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं कि आगे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो मतलब प्रीवियस सीजन में भी ऐसा हुआ होगा कि इतनी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी, कोई भी जीत सकता था, कोई नहीं भी जीत सकता था, बट देन ऑल्सो द कंट्री इज देयर. और अब हमारे नेक्स्ट इलेक्शंस भी आ गए, दैट मींस वी हैव सर्वाइव्ड. बिकॉज अगर प्रीवियस हमने अनसर्टेनिटी फेस कर रही है और अब दोबारा इलेक्शंस आ गए, वी हैव सर्वाइव्ड. सो वी हैव सर्वाइव्ड दैट टाइम पीरियड. मतलब अगर अभी भी अनसर्टेनिटी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर सर्वाइव कर जाएंगे, फिर फ्यूचर में इलेक्शंस आ जाएंगे. तो समवेयर दिस इज मेकिंग सेंस बिकॉज योर पास्ट गिव्स यू दैट कॉन्फिडेंस टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर. फिफ्थ, द सर्वाइवल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज डिपेंडेंट ऑन द पॉलिटिकल टेक्सचर ऑफ द कंट्री. नो, ऐसा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर इज डिपेंडेंट ऑन द कंट्री, ऐसी बात नहीं हो रही है. इट्स जस्ट दैट अनसर्टेनिटी है, कोई भी जीते द कंट्री विल सर्वाइव. प्राइम मिनिस्टर स्पेसिफिकली क्या डिपेंडेंट वो है, इकोनॉमी पे है या इकोनॉमी उस पर डिपेंडेंट है, ऐसी कोई बात नहीं हो रही है. Answer is fourth, which says that the previous season has also witnessed the same similar political uncertainty. And see now this is another elections. मतलब बीच का टाइम हम आराम से सरवाइव कर चुके हैं, तो मतलब आगे का भी सरवाइव हो जाएगा. So fourth is something that will reinforce the author's view. There is a degree of convergence in the definition of trust, which can be summarized as follows. Trust is a particular level of subjective probability with which an agent assesses that another agent or group of agents will perform a particular action. तो ट्रस्ट की डेफिनेशन है कि हमारी प्रोबेबिलिटी होती है, हम दूसरे से एक्सपेक्टेशन रखते हैं. देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि जो दूसरा बंदा है, दूसरा एजेंट है, another agent will perform an action. When we say we trust someone or that someone is trustworthy, we implicitly mean that the probability that he will perform an action that is beneficial to us. So when you trust somebody, then there is a probability you feel कि ऐसा होगा that that person will perform an action that will be beneficial to us. So which of the following statement best completes the passage above? तो हमें we have to see which statement is high enough for us to find out if he will cheat us. So what is saying, the probability that he'll perform an action. जब हम किसी पर ट्रस्ट करते हैं तो एक प्रोबेबिलिटी है कि वो जिस पे हम ट्रस्ट कर रहे हैं, जैसे ए इज हैविंग ट्रस्ट ऑन बी, तो ए अपने दिमाग में कुछ प्रोबेबिलिटी लेके बैठा होगा कि बी वो एक्शन परफॉर्म करेगा. तो ट्रस्ट में वो प्रोबेबिलिटी हाई होती है, लो होती है? हाई होती है ना, दैट इज व्हाई यू आर ट्रस्टिंग हिम. तो ये जो लो वाले ऑप्शन है, इनको पहले एलिमिनेट कर सकते हैं, बिकॉज इफ द प्रोबेबिलिटी इज लो, देन हाउ कैन यू ट्रस्ट दैट पर्सन? If the probability that the other person will behave the way you want or behave the way which is beneficial to you, it has to be high. If it is low, it's not trust. So third or fifth to aise out ho gaye because they're talking about low probability, but we need high probability for trust. You can trust somebody when there is high probability that the person will perform as per you. So third and fifth out. Ab bache first, second, fourth, sab mein high hai. Is high enough for us to find out if he will cheat us? Is high enough for us to consider engaging in some form of cooperation with us. उससे पहले हम क्या बात कर रहे हैं कि it is performing an action that is beneficial to us. तो cheat us नहीं होगा. That action is beneficial to us. So when we are trusting somebody, trust हम इसलिए नहीं करते कि हम फाइंड आउट कर सके कि वो चीट करेगा या नहीं. हम ट्रस्ट इसलिए करते हैं कि हम उसके साथ कोऑपरेट कर सकते हैं, बिकॉज ही विल एक्ट अकॉर्डिंग टू व्हाट वी थिंक. बिकॉज व्हेन यू आर कोऑपरेटिंग विद समबडी, द एक्शंस हैव टू बी इन सिंक. You can't cooperate, and that requires trust. When we are saying any team work, there has to be trust. तो ट्रस्ट और कोऑपरेशन ऐसे होता है. ये फाइंड आउट करने के लिए ट्रस्ट नहीं करते हो आप कि दैट पर्सन विल चीट यू और नॉट. ये इस चीज के लिए ट्रस्ट करते हो दैट यू विल कोऑपरेट, यू विल एंगेज विद दैट पर्सन. कंसिडर एंगेजिंग विद दैट पर्सन बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एन एक्शन दैट इज बेनिफिशियल टू अस. सो देन यू विल एंगेज एंड यू विल कोऑपरेट. So one, is extremely negative. That shows extremely negative attitude of you. Okay, you will find out whether that person will cheat or not. No, it is about engaging with him. It's about cooperate. We are trusting him so that we can engage with him, so that we can cooperate with him. Fourth is high enough for us not to build defenses against possible aggression. Again, first और fourth बिल्कुल सेम है कि हम उसको एक नेगेटिव व्यू में रख रहे हैं कि ट्रस्ट मतलब ये होता है कि मुझे पता चल जाए ये मेरे खिलाफ तो कुछ काम नहीं करेगा, कि ये मुझे चीट तो नहीं करेगा, ये कहीं अग्रेसिव तो नहीं हो जाएगा, मैं पहले से डिफेंस अपना बना के रखूं या ना बना के रखूं. दिस इज नॉट द थिंग. लुक एट द पैसेज, लुक एट द लाइंस दैट आर गिवन टू यू. यू आर ट्रस्टिंग द पर्सन बिकॉज
because there's a probability that if we perform the action that is beneficial to us and you will engage in some form of cooperation. This is the perfect answer, answer 2. So let's arrange these sentences to get a coherent paragraph. This is a para-jumble question. So, but here the first and the last sentences are already given to you. तो first हमें given है और last 6 हमें given है. ये बीच के 4 हमें arrange करने हैं. Let's see. One day you come to me. Okay, suppose I know someone Smith. Okay. One day you come to me and say Smith is in Cambridge. I inquire and find you stood at Guildhall and saw at the other end a man and said that was Smith. I'd say, listen, this isn't sufficient evidence. I've heard that he has been killed in a battle in this war. If we had a fair amount of evidence he was killed, I would try to make you say that you're being credulous. So अभी मतलब ऐसे जहां पर ऑप्शंस दिए होते हैं, इट इज बेटर टू एलिमिनेट, जल्दी क्वेश्चन हो जाता है इंस्टेड ऑफ यू ट्राइंग ऑल द परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस. तो देखो, आइड से दिस इजंट सफिशिएंट एविडेंस, मतलब पहले कोई एविडेंस की बात हो रही है, ये एकदम से फर्स्ट के बाद तो नहीं आ सकता, तो जहां पे फर्स्ट की बात आ रहा है उनको हम एलिमिनेट कर देते हैं. बिकॉज बिफोर दिस वी हैव टू टॉक अबाउट समथिंग जो एविडेंस के बारे में बात करें. दिस इज इनसफिशिएंट एविडेंस. सीधा आई नो समवन स्मिथ, उसके बाद आप नहीं बोल सकते ये सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, कोई फ्लो ही नहीं बन रहा. तो सेकंड और फिफ्थ आउट. अब वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इज इनसफिशिएंट एविडेंस, और सिक्स्थ में है इफ वी हैड फेयर अमाउंट ऑफ एविडेंस. तो एटलीस्ट आर और सिक्स्थ दोनों एविडेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके आसपास ही होना चाहिए. बट लेट्स सी अदर थिंग्स. हाँ, पी और क्यू देखो. पी सेइंग कि यू वन डे केम टू मी, और फिर आपने बताया दैट स्मिथ इज इन कैम्ब्रिज. एंड क्यू भी थोड़ा और डिटेल में लोकेशन के बारे में बात कर रहा है कि ही वेंट टू इंक्वायर एंड ही वेंट टू गिल्ड हॉल, सो दैट प्लेस इन कैम्ब्रिज, और वहां पर ही सॉ द अदर पर्सन टोल्ड हिम कि दैट पर्सन इज स्मिथ. एंड ये दोनों ही चीजें स्मिथ की कोई लोकेशन या उसको डिस्क्राइब करनी है कि वो कहाँ है. और फिर हम कह सकते हैं कि सी दिस इज नॉट सफिशिएंट एविडेंस. सो समवेयर इट इज मेकिंग अ फ्लो. अगर हम ऐसे सोचें, पी क्यू दोनों उसकी पोजीशन डिस्क्राइब कर रहे हैं कि स्मिथ कैम्ब्रिज में, और पी क्यू उसको और डिटेल में बता रहा है. पहले क्यू है, फिर क्यू, मतलब कि अच्छा पहले पी ने बताया कि वो वहां है और फिर उसके रिस्पॉन्स में वो उसको इंक्वायर करने गया है. तो पी और क्यू का फ्लो है. और फिर हम कह सकते हैं कि ये जो है ये सफिशिएंट एविडेंस नहीं है कि वो वहां पर है या नहीं है. और फिर सिक्स में भी एविडेंस की बात हो रही है. सो पी क्यू के बाद आर मेक सेंस बिकॉज पी एंड क्यू इज एक्चुअली टेलिंग कि स्मिथ है या नहीं है, और फिर आर भी यही एविडेंस की बात कर रहा है कि वो है या नहीं. ये उसका सफिशिएंट एविडेंस नहीं है. फिर सिक्स कह रहा है अगर हमारे पास अच्छा एविडेंस होता तो, मतलब इससे पहले ये आ चुका होगा ना कि हमारे पास अच्छा एविडेंस नहीं है. और फिर एस इज सेइंग दैट आई हैव हर्ड ही हैज बीन किल्ड इन अ बैटल. तो ये स्टार्टिंग में उसकी इंट्रोडक्शन पे ज्यादा सूट करेगा कि स्मिथ कौन है, वो बैटल में मर चुका है, और फिर वो कहाँ है उसकी बात हो रही है. और फिर हम कह रहे हैं कि ये तो अच्छा एविडेंस नहीं है, और फिर हम एंड में कह रहे हैं कि अच्छा एविडेंस होता तो वी कुड हैव नोन हिम लाइक. तो आंसर बन रहा है 1 एस पी क्यू आर 6. विच ऑप्शन इज दिस? हाँ, पी क्यू आर 6. देखो वैसे भी एस बहुत एंड में पॉइंट नहीं बनाता, बीच में सडनली हम कह दे कि ही इज किल्ड इन बैटल. स्टार्टिंग में उसकी इंट्रोडक्शन हो रही है, तो ये भी एलिमिनेट हो सकता था इस वे में. और क्यू आई इंक्वायर यू, सडनली हम कह रहे हैं आई नो समवन स्मिथ, और फिर हम बता रहे हैं आई इंक्वायर एंड फाइंड आउट कि वो कहाँ है. पहले बताना पड़ेगा ना वो कैम्ब्रिज में, और फिर वो उसके कैम्ब्रिज में वो जगह जहां पर है, फिर उसके रिस्पॉन्स में आपने इंक्वायर किया स्पेसिफिकली वहां जाके कि ऐसे बाकी सब बातें. सो दिस इज मेकिंग मोर सेंस. वन विच इज सेइंग कि स्मिथ, स्मिथ बैटल में मर गया. फिर पी क्यू इज टॉकिंग अबाउट, मतलब पी इज टेलिंग कि वो कहाँ है, और क्यू उसको इंक्वायर कर रहा है जो उसने पी में बताई है जगह, क्यों उसकी इंक्वायरी के बारे में है. और फिर आर इन दोनों का कंबाइन बता रहा है कि भाई ये तो सफिशिएंट एविडेंस नहीं है. और फिर सिक्स बोल रहा है कि अगर सफिशिएंट एविडेंस होता तो. सो दिस इज द आंसर. आंसर इज 1, ऑप्शन 1. नेक्स्ट, दिस इज अगेन सिमिलर क्वेश्चन. फर्स्ट और सिक्स स्टेटमेंट गिवन है और बाकी को आपको अरेंज करना है. The word symmetry is used here with a special meaning and therefore needs to be defined. Okay, अब हम symmetry की definition की बात हो रही है. For instance, if we look at a vase that is left and right symmetrical, then turn it 180 degree around the vertical axis, it looks the same. For instance, जैसे तो किसी definition का example हो तो ये शुरू में नहीं आएगा. This is like an example.
तो स्टार्टिंग में नहीं आएगा, ये 1 के बाद सीधा P नहीं आएगा, इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। इससे पहले कोई तो बात की होगी जिसका एग्जाम्पल होगा। क्यों? व्हेन वी हैव अ पिक्चर सिमेट्रिकल वन साइड इज समहाउ द सेम एज द अदर साइड। हाँ, ये बता रहे हैं कि जब सिमेट्रिकल होता है तब क्या होता है। आर व्हाट इज अ थिंग सिमेट्रिकल, हाउ कैन वी डिफाइन इट। देखो, दिस कैन कम इन द बिगनिंग, क्योंकि हम लोग उसको कैसे डिफाइन करें, शुरू में क्वेश्चन होता है, बाद में आप उसको डिफाइन करते हुए उसका आंसर करोगे। जब सारा आप बता दोगे उसकी डेफिनेशन, उसके बाद थोड़ी बोलोगे व्हाट इज सिमेट्रिकल, हाउ कैन वी डिफाइन इट। ये बहुत स्टार्टिंग में है, ये एंड में नहीं हो सकता, इतनी एंड में नहीं आएगा ये, दिस इज आउट, बहुत स्टार्टिंग में है ये। Professor Herman Bale has given this definition of symmetry. A thing is symmetrical if one can subject it to a certain operation and it appears exactly the same after operation. तो वो symmetrical होती है। अब देखो, P एक्चुअली S की एग्जाम्पल है। P कह रहे हैं कि कोई आप ऑपरेशन करते हो और उसके बाद भी वो सेम लग रहा है। S इज गिविंग यू द डेफिनेशन और P उसका एग्जैक्ट एग्जाम्पल दे रहा है कि जैसे कि वहां से उसको 180 डिग्री इज द ऑपरेशन और उसके बाद भी इट लुक्स द सेम। सो पी इज द एग्जाम्पल ऑफ एस। तो एस और पी एक साथ आएंगे, एस और पी ऐसे एक साथ आ रहे होंगे कहीं पे। पी एस नहीं आएगा क्योंकि पी इज द एग्जाम्पल और डेफिनेशन गिवन इन द एस। पहले डेफिनेशन आती है फिर उसका एग्जाम्पल आता है, दिस इज आउट। तो दो ऑप्शन है जिसमें एस पी साथ में आ रहा है। अब हमें क्यू आर का देखना है। क्यू में वो बता रहा है सिमेट्री होती क्या है, कि व्हाट डू यू मीन व्हेन यू हैव अ सिमेट्रिकल पिक्चर। और आर इज सेइंग सिमेट्रिकल होता क्या है, लेट्स डिफाइन इट। तो नेचुरली आर पहले आएगा फिर क्यू आएगा। आर बोलेगा सिमेट्री होती क्या है, व्हाट इट मीन्स टू बी सिमेट्रिकल। क्यू बता रहा है सिमेट्री का मतलब क्या होता है। तो पी आर विल कम बिफोर, क्यू विल लेटर कम लेटर ऑन। तो फर्न आर क्यू और एस पी एक साथ थे और 6, तो ये ऑप्शन है फोर्थ, 1 R Q SP 6. In recent past, Indian football team has lost most of the matches in international football tournaments. The most successful coaches in Indian club football tournaments are from Latin American countries. In most of the Latin American countries, football is more popular sport than cricket. Okay, तो हमें कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है इंडिया की फुटबॉल के बारे में या लेटिन अमेरिका की फुटबॉल के बारे में। From the above passage, choose the correct option. It can be definitely concluded that in India, cricket is more popular than football. हमें सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन दी है कि लेटिन अमेरिका में, इन लैटिन अमेरिका कंट्रीज, वहां पर फुटबॉल ज्यादा पॉपुलर है क्रिकेट से। इंडिया में वो कम है, वो ज्यादा है, वो उतना कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई। तो यू कांट से दैट इज ट्रू। सिर्फ लेटिन अमेरिका कंट्रीज के बारे में बोला, इंडिया के बारे में अपने आप कैसे कहें। अपनी सेल्फ असम्पशन जो आप रियलिटी जानते हो उसके बेसिस पे मत करो, व्हाट इज गिवन इन दीज सेंटेंसेस उसके बेसिस पे करो। सेकंड, इट कैन बी डेफिनेटली कंक्लूडेड दैट मोस्ट लैटिन अमेरिकन कंट्रीज आर सक्सेसफुल एट फुटबॉल। उसमें लिखा है फुटबॉल इज मोर पॉपुलर। ये कहाँ लिखा है कि इट इज सक्सेसफुल। जरूरी थोड़ी जो चीज पॉपुलर हो सक्सेसफुल है, जो जरूरी थोड़ी जो लोग ज्यादा करते हैं वो अच्छा भी करते हैं उसमें, नॉट रियली नेसेसरी। कोई लिंक नहीं है पॉपुलैरिटी और सक्सेसफुल होने में इधर। तो ये भी एलिमिनेट कर सकते हैं हम अपने आप। क्यों बोले it can be definitely concluded that in recent past coaches of Indian football teams are not from Latin America. How, how can you like say that कि definitely concluded recent past में जो हमारे कोचेस हैं वो लेटिन अमेरिका से नहीं है। क्योंकि ऐसा तो दिया नहीं हुआ, ये दिया हुआ है कि हमारे जो सक्सेसफुल कोचेस थे वो लेटिन अमेरिका से थे। अब वो कब थे, रीसेंट में थे या बहुत बहुत पहले के थे या अभी के थे, नए के, टाइमिंग का कुछ गिवन नहीं है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि रीसेंट पास्ट में वहां के नहीं थे। सिर्फ ये दिया हुआ है कि हमारे जो सक्सेसफुल कोचेस हैं वो लेटिन अमेरिका से रहे हैं, जो मोस्ट सक्सेसफुल रहे हैं मैक्सिमम वो लेटिन अमेरिका से थे। बट हम ये कैसे कह सकते हैं कि रिसेंट वाले लेटिन अमेरिका से नहीं थे। हो सकता है लेटिन अमेरिका से ही हो। फिर भी हम आगे मान लो कि पहले जो सबसे सक्सेसफुल रहे पास्ट में अभी तक की हिस्ट्री में, वो कोई 5 कोचेस हैं। ठीक है, अभी तक जो यहाँ पर अभी से लेकर मतलब पास से लेके प्रेजेंट तक जितना भी टाइम है उसमें कोई 5 कोचेस सबसे ज्यादा सक्सेसफुल थे, उसमें से 3 लेटिन अमेरिका के थे। तो हम कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम लेटिन अमेरिका। बट ये तो नहीं है ना कि अभी वाला लेटिन अमेरिका का नहीं हो सकता है वो लेटिन अमेरिका का ही हो। ये थोड़ी कहा है कि लेटिन अमेरिका का हर कोच ही सक्सेसफुल होता है। जो हमारे सक्सेसफुल रहे हैं उसमें से मैक्सिमम लेटिन अमेरिका के थे। तो ये मतलब थोड़ी है उसका कि सब लेटिन अमेरिका वाले कोच सक्सेसफुल होते हैं और अभी वाले लेटिन अमेरिका के नहीं थे या उनके थे, ऐसे आप कुछ नहीं कह सकते। उनके भी हो सकते हैं, तब भी हार सकते हैं, क्योंकि हो सकता है 5 में से जो सबसे सक्सेसफुल थे वो 3 पास्ट में कभी लेटिन अमेरिका के रहे हो। सो 3 इज ऑल्सो कांट बी कंक्लूडेड। 4, इट कैन बी definitely concluded that European football coaches are less successful than their Latin American counterparts for Indian national team.
यूरोपियन फुटबॉल कोचेस की बात ही नहीं हो रही है. अब आई आर बी ब्रिंगिंग देम हियर. लैटिन अमेरिका की बात हो रही है तो अननेसेसरी आउट ऑफ पिक्चर नहीं जाते हैं. यूरोपियन तो कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है यहाँ पर. It cannot be definitely concluded that the more popular a sport, the better the chance of producing a successful coach in that sport. It cannot be concluded correct. कि जरूरी ये कहीं नहीं लिखा है कि पॉपुलर है तो वहां का कोच ज्यादा सक्सेसफुल होगा. नहीं, पॉपुलर है वो. अब ये कोइंसिडेंस है कि देखिए वहां पर पॉपुलर है इसलिए थोड़ी है, इस वजह से थोड़ी है कि वो यहाँ पर सक्सेसफुल हुए. वो अलग केस है कि हाँ हमारे जितने सक्सेसफुल केसेस जो हमारे मान लो 5 बहुत सक्सेसफुल कोचेस रहे हैं उसमें से 3 लैटिन अमेरिका के रहे थे. ठीक है. एंड द मोर पॉपुलर स्पोर्ट द बेटर द चांस ऑफ प्रोड्यूसिंग सक्सेसफुल कोच इन दैट स्पोर्ट. ऐसा कोच इन दैट स्पोर्ट इज नॉट नेसेसरी. और हाँ वहां पर पॉपुलर भी रहा बट पॉपुलैरिटी और सक्सेसफुल होने में कोई लिंक नहीं है. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं. तो डेफिनेटली इट कैन नॉट बी कंक्लूडेड. अभी सिर्फ हमने लैटिन अमेरिका का कहा है, हो सकता है कोई और कंट्री हो जहां पर फुटबॉल वहां से भी ज्यादा पॉपुलर हो लेकिन जरूरी नहीं वहां पर सक्सेसफुल कोचेस हुए हो जो हमें मतलब सिखा सके. नॉट नेसेसरी. सो इट कैन नॉट बी डेफिनेटली कंक्लूडेड. हो सकता है पॉपुलर है बट हो सकता है वो सक्सेसफुल कोच बनाए भी सक्सेसफुल कोच ना भी बनाए. जब हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि सक्सेस और पॉपुलैरिटी का यहाँ पर लिंक नहीं है. तो आंसर इज फिफ्थ. बिकॉज फर्स्ट नहीं हो सकता, इंडिया के बारे में बात की नहीं गई, सिर्फ लैटिन अमेरिका की पॉपुलैरिटी की बात की हुई है. यूरोपियन वाला बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था. फोर्थ और जो सेकंड है वो कोई लिंक नहीं है कि वो बस वहां पर पॉपुलैरिटी का बताया सक्सेसफुल होने का नहीं बताया है. और थर्ड रीसेंट पास्ट में लैटिन अमेरिका से थे या नहीं ये नहीं बताया गया. बस ये बताया ओवरऑल अब तक काफी सक्सेसफुल रहे. बट अभी वाला वो वहां का था या नहीं ये नहीं पता. भले ही हम हार गए या भले ही जीत गए हो, रिसेंट वाले का नहीं बताया हुआ. सो यू कैन कंक्लूड. फिफ्थ में है कि वी कैन नॉट कंक्लूड. यही तो हम कह रहे हैं कि पॉपुलैरिटी और सक्सेस में कोई लिंक नहीं है. यही बोल रहा है दैट यू कैन नॉट कंक्लूड इट. सो आंसर इज 5. चूज द बेस्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड सोब्रिके फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस. अब टी साइलेंट होता तो पहले ही जिसमें टी की साउंड गिवन है उनको एलिमिनेट कर देते हैं. थर्ड गॉन, फोर्थ गॉन एंड फिफ्थ गॉन. फर्स्ट और सेकंड बचा है. इट्स नॉट सब, इट इज सोब्र. सो सोब्र सब नहीं होता. आंसर इज 1. दिस इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड. फर्स्ट सोब्रिके, सोब्रिके. 1. Answer is 1. I hope you would have understood this question. Assumptions are analogous to the basic ingredients in a gourmet recipe. Only the final product of the recipe dictates whether the ingredients suffice. So, which of the following is analogous to the statement above? So, what is this statement telling us? कि रेसिपी में मतलब इंग्रेडिएंट्स जो थे, जो इनपुट था वो सफिशिएंट था या नहीं. ओनली द आउटपुट विल टेल. राइट. सो लेट्स सी व्हिच स्टेटमेंट मैचेस इट. गुड वाइन नीड्स नो एडवर्टाइजमेंट. यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट या कुछ पब्लिसाइज करने की बात नहीं हो रही है. सो दिस इज आउट. द एप्पल नेवर फॉल्स फार फ्रॉम द ट्री. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द डिस्टेंस और समथिंग लाइक दैट. ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल. इस लाइन का मतलब हुआ कि पहले चाहे कुछ भी होता रहे, एंड में अगर चीज सही हो जाती है देन यू नो वी फील इट्स ओके, इट वाज वर्थ इट. बट यहाँ पे वो बात नहीं हो रही. दोनों में डिफरेंस है. यहाँ पर है कि जो इनपुट ठीक थे या नहीं वो आपके आउटपुट से पता चलता है. यहाँ पर ऐसे आउटपुट की बात नहीं हो रही है या इनपुट आउटपुट. इसमें है कि अच्छा बहुत सारी लाइफ में इवेंट्स हो रहे हैं, एंड में ठीक हो गया जो भी चल रहा था, बट एंड मतलब वो नहीं है कि इनपुट ठीक थे या नहीं. ये बात का कुछ पता नहीं चल रहा कि आउटपुट से हम बता सकते हैं इनपुट सही था या नहीं. ये वो वाली लाइन नहीं है. एज यू सो सो शैल यू रीप. अब इसमें भी इसका मतलब ये, इसमें यहां से हम इनपुट से आउटपुट की तरफ जा रहे हैं कि जैसा इनपुट होगा वैसा आउटपुट मिलेगा. लेकिन स्टेटमेंट जो गिवन है उसमें हम आउटपुट से इनपुट पे जा रहे हैं कि जैसा आउटपुट है उसके अकॉर्डिंग हम बता पाएंगे कि इनपुट सफिशिएंट था या नहीं. तो जो सीक्वेंस है एंड्स मींस रिवर्सल हो गया इस वाली स्टेटमेंट में. ये गलत डायरेक्शन में. फिफ्थ, द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग. सो कि जब खाते हैं उसे तब हमें प्रूफ मिलता है कि वो सही है या नहीं. तो एग्जैक्टली जो स्टेटमेंट हमें पहले गिवन है कि आउटपुट को जब टेस्ट करते हैं तब हमें पता चलता है उसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो सही या नहीं. ऐसे ही यहाँ पे पुडिंग को जब हम खाते हैं तब हमें पता चलता है वो ठीक है या नहीं. सो आंसर इज 5. रेस्ट ऑफ द 4 आर नॉट करेक्ट. Okay, read the following poem. I sought a soul in the sea and found a coral there. Beneath the foam for me, an ocean was all laid bare. Into my heart's night, along a narrow way, I groped, and lo, the light, an infinite land of day. तो ये पोएम क्या बता रही है
कि जब उसने मतलब सी में देखा, वहां पे कोरल था, कोरल्स होते हैं सी में, कलरफुल कोरल्स, वेरी ब्यूटीफुल, ऑस्ट्रेलिया में द ग्रेट बैरियर रीफ इज वेरी फेमस फॉर इट। तो उसके नीचे उसने देखा ओशन तो बिल्कुल बेयर है, ओशन में कुछ है ही नहीं। बट उसने फिर अपने दिल में ही इंट्रोस्पेक्टेड, तो अपने दिल में देखा तो उसे बहुत लाइट मिली, मतलब बहुत कुछ मिला। तो बाहर कुछ नहीं मिला, अंदर सब कुछ मिल गया। इनफाइनाइट मतलब सब कुछ अंदर ही मिल गया। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर्स द एसेंस ऑफ द पोएम? व्हाट लाइज आउटसाइड इज ऑलवेज डिसेप्टिव। हाँ ठीक है, ये पहले पार्ट को बता रहा है कि पहले जो बाहर की चीजें हैं वो डिसेप्टिव होती है, मतलब कोरल के नीचे उसे बेयर लैंड मिला है ओशन का, तो कुछ मिला नहीं उसको। बट जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है कि अंदर सब कुछ मिला, दिल के अंदर ही, मतलब थ्रू हिज हार्ट ही गॉट एवरीथिंग, वो नहीं कंप्लीट है। तो कंप्लीट नहीं है ये वाली स्टेटमेंट, बिकॉज द सेकंड पार्ट हैज नॉट बीन आंसर्ड। परस्यू द नैरो पाथ एंड अवॉइड द ब्रॉड वेज, ये कोई मतलब लॉजिक ही नहीं है। यहाँ पे नैरो या ब्रॉड वे की बात नहीं हो रही है, हम एक्सटर्नल और इंटरनल की बात कर रहे हैं। सो दिस इज आउट। External search is futile. Explore the inner space for answer. This is quite good. Let's see other options. Heart's pathways are broad and clear to find the destination. ये broad and clear की बात नहीं हो रही है, और ये outer वाले के comparison भी नहीं रहा। जैसे थर्ड में inner और external दोनों पता है, एक्सटर्नल सर्च से कुछ नहीं हुआ, जो उसने सी में देखा तो उसे कुछ नहीं मिला, जो अपने दिल में देखा तो सब कुछ मिल गया। तो वो इनर और एक्सटर्नल की बात हो रही है। तो थर्ड इज इज द आंसर, बट फोर्थ भी गलत है, क्योंकि सिर्फ हार्ट की ब्रॉड वेज और ऐसी बातें की है। Light offers sight and insight. This is not at all related to what we are talking about. So answer is third, कि externally जब उसने सी में देखा उसे कुछ नहीं मिला, but when he went inside, then he got everything. So internal, inner or outer world. Third is the answer. Which of the following options best captures a relationship similar to inspect and vivisect? Inspect, when you're looking for something, आप किसी चीज को ध्यान से देख रहे हो, कुछ जानना चाह रहे हो। vivisect क्या होता है बायो में, लाइक वो ऑर्गेनिजम्स को काट काट के देखते हो, तो और या फिर अगर जैसे इंस्पेक्शन के टाइम अगर इसे यूज करते हैं तो मतलब और डिटेल में इंस्पेक्ट करना, और डिटेल में जानना चीजों को। तो लेट्स सी। इंक्वायर, ऑब्जर्व नहीं, मतलब इंक्वायर अलग चीज, ऑब्जर्व कोई वो नहीं बता रहे कि ये उसी का एक डिटेल स्टेप है, ऐसे कुछ नहीं बता रहे हैं। तो फर्स्ट नहीं बता रहा, क्योंकि हमें ऐसा बताना है सेकंड वाला फर्स्ट वाले का डिटेल स्टेप। इंक्वायर एंड एक्सप्लोर, नो, एक्सप्लोर इज लाइक लुकिंग फॉर समथिंग एल्स, आउटर वर्ल्ड में आप घूम रहे हो, कुछ एक्सप्लोर कर रहे हो, इंक्वायर से मैच नहीं हो रहा। और ये इंक्वायर और इंक्वायर में क्या होता है? इंक्वायर इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर फॉर्मल थिंग्स, इंक्वायर जनरली। इन्वेस्टिगेट और इंटेरोगेट, इन्वेस्टिगेट और इंटेरोगेट में, इन्वेस्टिगेट ऑफकोर्स आपको डेप्थ में कुछ इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और इंटेरोगेट जब आप किसी से क्वेश्चनिंग आंसर कर रहे हो तो डेफिनेटली वो इसका एक स्पेसिफिक स्टेप है। इन्वेस्टिगेशन के अंदर इंटेरोगेशन होती है, जैसे इंस्पेक्ट कर रहे हो तो उसका और डिटेल विविसेक्ट होता है, इन्वेस्टिगेशन में और डिटेल हम इंट्रोगेशन करते हैं उस बंदे से और पूछ, इन्वेस्टिगेशन में तो बहुत चीजें कर रहे थे, बट इंटेरोगेशन में स्पेसिफिकली यू आस्क मोर क्वेश्चंस। तो दिस इज लुकिंग क्वाइट सिमिलर। लेट्स सी अदर ऑप्शंस। क्वेरी एंड सर्वे, इसमें जो रिलेशनशिप दिया क्वेरी मतलब वी आर आस्किंग क्वेश्चन, इट कैन बी डायरेक्टली टू अ पर्सन, बट सर्वे में नंबर ज्यादा होता है, ना कि मतलब उसी का एक डिटेल्स है, बट सर्वे में इट इज मोर अबाउट नंबरिंग ज्यादा लोगों की, तो वो हमारा यहाँ पर केस नहीं था कि नंबर वाइज ज्यादा हो, तो फोर इज आउट। फिफ्थ, क्वेश्चन एंड रिस्पॉन्ड, तो ये तो बिल्कुल ऑपोजिट हो गया, हमें उसी का एक स्टेप्स रिलेटेड बताना था, तो क्वेश्चन का ऑपोजिट होता है रिस्पॉन्ड। तो फिफ्थ भी आउट है, फोर्थ भी आउट है, बिकॉज वो बिल्कुल ही कंप्लीटली थीम से आउट है। फर्स्ट भी क्योंकि इंक्वायर ऑब्जर्व नहीं होता और एक्सप्लोर नहीं हो रहा इंक्वायरी के साथ। तो आंसर इज थर्ड, इन्वेस्टिगेट और इंटेरोगेट। जैसे इंस्पेक्ट का और आप डिटेल विविसेक्ट करते हो, ऐसे मतलब इन्वेस्टिगेशन में ही एक स्टेप इंटेरोगेशन होती है, जब ज्यादा क्वेश्चनिंग आप करते हो। तो आंसर इज थर्ड। The subject of his book is knavery, skullduggery, cheating, betrayal, unfairness, crime, sneakiness, malignry, cutting corner, immorality, dishonesty, betrayal, graft, wickedness, and sin. Which of the following option best captures all the italicized words above? तो ये जो सब नेगेटिव वर्ड्स हैं, ये किस मतलब ऑल दीज बिहेवियर्स आर गिवन, किस में ये सब आ जाएंगे? एक अम्ब्रेला टर्म ढूंढे जिसमें सब आ जाएंगे। अग्रेसिव बिहेवियर्स, अग्रेसिव, हाँ कुछ कुछ चीज अग्रेसिव है, क्राइम या वो, लेकिन सब कुछ अग्रेसिव नहीं है। डिसऑनेस्टी में नॉट बी अग्रेसिव, यू कैन से ग्राफ्ट इज नॉट अग्रेसिव, विकीनेस इन, तो सब कुछ अग्रेसिव तो नहीं है, बहुत सारे बिहेवियर जिसमें नॉन अग्रेसिव भी है, तो हम एक इसको अम्ब्रेला टर्म यूज नहीं कर सकते टू डिफाइन ऑल ऑफ देम टुगेदर। आउट। इलीगल बिहेवियर्स, इमोरालिटी इज नॉट इलीगल, पॉसिबिलिटी है कि वो लीगल हो, पर वो फिर भी इमोरल हो सकता है। ठीक है, तो लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ यू डू नॉट रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ये कोई इलीगल काम नहीं है, बट इट इज इमोरल। तो सब कुछ जो ये वर्ड्स है यहाँ पर, ये सब इलीगल नहीं है, बहुत सारे इसमें से लीगल भी हो सकते हैं। सो ये वर्ड भी अम्ब्रेला वर्ड नहीं है यहाँ पर। डेविएंट बिहेवियर्स, यस, डेविएंट बिहेवियर्स क्या होते हैं? व्हाई डू वी कॉल देम डेविएंट बिहेवियर्स? देखो सोसाइटी एक एक सोसाइटी है,
उसके कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ मॉरल्स होते हैं, ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, जो भी इनके खिलाफ जाता है उसे बोलते हैं डेविएंट। वो डेविएट कर रहा है ना वहां से, तो डेविएंट मतलब कुछ भी नेगेटिव बिहेवियर होता है वो डेविएंट होता है, क्योंकि सोसाइटी के मॉरल वैल्यूज होती है, हमें ये सब नहीं करना चाहिए, जो भी उसके खिलाफ है, कुछ भी ऐसी चीज जो सोसाइटी के व्हाट सोसाइटी थिंक्स इज राइट एंड रॉन्ग, ये सब चीजों के खिलाफ है, वो डेविएंट होता है। तो ये सारी ही चीजें नेगेटिव है। तो देख, बिकॉज कोई भी सोसाइटी इनको प्रमोट नहीं करेगी, सोसाइटी की वैल्यूज के अगेंस्ट है सब कुछ, तो इसलिए डेविएंट बिहेवियर इज ऑल राइट। बैंड बिहेवियर, अब जरूरी नहीं बैंड हो, कहीं पे अलाउड भी हो सकते हैं, ठीक है, लाइक इमोरलिटी, जस्ट लाइक आई गिव यू एग्जांपल कि मतलब यू डोंट रिस्पेक्ट, इफ यू डोंट रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तो ऐसा नहीं है, वो बैंड है, बट स्टिल वो एक इन नेगेटिव बिहेवियर है, तो वो इस टर्म में नहीं यूज हो सकता, दिस टर्म कैन नॉट बी यूज एज अ बास्केट फॉर ऑल द टर्म्स, तो बैंड आउट। वीटोड बिहेवियर भी उसी सेंस में, व्हाट इज वीटो, जब आप किसी डिसीजन को रोक देते हो अपनी वीटो देके, तो वो भी नहीं है। तो मतलब ये इलीगल, बैंड, वीटोड, अग्रेसिव बिहेवियर नहीं है, ये एक टर्म विच इज थर्ड, डेविएंट। जो भी नेगेटिव बिहेवियर होता है, कोई भी नेगेटिव, वो इस अम्ब्रेला टर्म में आ सकता है, कोई भी नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव मतलब सोसाइटी के मोरल वैल्यूज के अगेंस्ट, चाहे वो लीगल है, चाहे वो इलीगल है, चाहे वो बैंड है, चाहे वो बैंड नहीं है, पर वो सोसाइटी के मॉरल्स के अगेंस्ट है, तो डेविएंट, और ये सब अगेंस्ट है, तो दे आर ऑल डेविएंट बिहेवियर्स। सो दिस इज another RC. So let's start reading it. An effective way of describing what interpersonal communication is or is not is perhaps to capture the underlying beliefs using specific game analogies. Communication as bowling. So, we are using different games to describe how it relates to communication. So, communication as bowling. The bowling model of message delivery is probably the most widely held view of communication. I think that's unfortunate. This model sees the bowler as the sender who delivers the ball, which is the message. So, in bowling, like you have a person who is throwing the ball. So, that person is the sender. Just like, in any communication, you will have a sender, a message, and receiver. So here the sender is the bowler and ball is the message. Who delivers the ball, which is the message. So the message is the ball. As it rolls down the lane, the channel, the clutter on the board's noise may deflect the ball, which is the message. Yet, if it is aimed well, the ball strikes the passive pins, the target audience. So you have the sender, you have the message, and you have the receiver. So here, in this case, it is those pins on your target audience. So those pins are your receiver. So bowler, sender, message, ball, and pins, receiver. So it strikes the passive pins, the target audience, with a predictable effect. In this one-way model of communication, it is definitely one way. How? One way because only the sender is sending the message. So the bowler, he passes the ball, he throws the ball, and those pins get affected. तो एक ही वे में हो सकता है, to sender to the receiver. These pins can't, respond back. So it is just one way. So in this one-way model of communication, the speaker, bowler, must take care to select a precisely crafted message, which is ball, and practice diligently to deliver it in the same way every time. Of course, that makes sense only if target listeners are interchangeable, static pins waiting to be bowled over by our words, which they aren't. This has led some observers to propose an interactive model of interpersonal communication. So it's a shortcoming of this model because it's definitely one way, and it has to be in the same manner only. Then only you can let the pins be down. So that is possible only if the target listeners, which is your pins here in this case, they are interchangeable, they are very similar to each other, then only you can use same technique, say every time. So this is the shortcoming of this model, and then that has led to a proposal of interactive model, जिसमें both the sides they talk to each other. In this way, only one person can send the message. It's one-way model, but interactive would be two-way. So because of the shortcoming of this one-way model, we have another, there is a requirement or a proposal of another model, which is the interactive model. Communication as ping pong. Unlike bowling, ping pong is not a solo game. So this is another, अभी हमने इस गेम से किया, अब नेक्स्ट गेम से कंपैरिजन कर रहे हैं. This fact alone makes it a better analogy for interpersonal communication. That's good because तो सिर्फ एक ही बंदा एक्शन में था, but here
It's not just one. And that is why it is better way to represent communication, because in communication it cannot be just one-sided. Most of the time it is going to be both the sided. One party puts the conversational ball in play and the other gets into position to receive. It takes more concentration and skill to receive than to serve, because while the speaker or the server knows where the message is going, the listener or the receiver doesn't. Like a verbal or non verbal message, the ball may appear straightforward yet have a deceptive spin. Ping pong is a back and forth game. Players switch roles continuously. One moment, the person holding the paddle is an initiator, the next second, the same player is a responder, gauging the effectiveness of his or her shot by the way the ball comes back. The repeated adjustment essential for good play closely parallels the feedback process described in a number of interpersonal communication theories. Now, ये पहला कंपैरिजन बॉलिंग के साथ था. अब ये सेकंड कंपैरिजन दूसरे गेम के साथ है, पिंग पोंग. Just like a table tennis or something like that. So here you need two people who play it. So this is more interactive. It's one way tha. This is at least two way. And how it is different, that the person who is throwing, the person who's serving the ball initially, this person knows where the ball will go. But the person who's on the other end, who's the receiver, he doesn't know where the ball will come. So he has to be alert all the time. And another thing, just like in communication, you say something, the other person listen. Now the second person says something, then you listen. So the first person, who's serving, now he's the one who has to receive the ball. So इस game में वो वाली comparison भी बहुत अच्छा हो रहा है कि sometimes you are the senders, then the next moment you are the receiver. इस गेम में भी ऐसे पहले आप बॉल सर्व करोगे, फिर आपको दूसरे की सर्व रिसीव करनी पड़ेगी. So you are changing things, you are changing this setting just like in a real communication. And secondly, इसमें भी कुछ changes, बार बार आपको changes करने पड़ते हैं, अपनी position में. Just like in communication, there's a feedback process. So something you told to that person, and maybe that person didn't find interested or whatever, then you will make certain changes in your message or the way it was delivered. Similarly, here also there will be a feedback process in where you have to change your position. So there has to be certain adjustment, just like in way we have in real communication. So communication as a ping pong is a much more realistic model of describing communication comparison to bowling. Third, communication as dumb charades. Dumb charades. Here, the game of charades best captures the simultaneous and collaborative nature of interpersonal communication. So now this is a third way of explaining communication. It is through another game, which we also play many a times. Dumb charades. Here, we know what happens. The person has to mimic, and the other people, they have to guess what the other person is mimicking. So the game of charades best capture the simultaneous and collaborative nature of interpersonal communication, because there are more than, here only two people are involved. Here just one person, one way model. It is two-way model, but here at the same time we're communicating it to many people. So there is collaboration. So it has a collaborative nature of interpersonal communication. A charade is neither an action like bowling a strike nor an interaction like a rally in ping pong. It's a transaction. So ये एक्शन था, bowling वाला एक वन वे एक्शन था. The person throws the ball and जो पिंस गिरने गिर जाएंगी. पिंग बॉल was an interaction. दोनों लोग आपस में जैसे बात करते हैं वैसे ही है. One time you will serve, next time I will receive, like that. But here it is not an action and not even an interaction. It's a transaction. It requires collaboration and cooperation, not just of two people, but more. Charades is a mutual game. The actual play is cooperative, so it requires cooperation. One member draws a little title or slogan from a batch of possibilities and then tries to act it out, usually for teammates in a silent mini drama. The goal is to get at least one partner to say the exact words that are on the slip of the paper. Just like in case we play with the names of movies, but it can be anything. Of course, the actor is prohibited from talking out loud. So you can't talk, you have to act. Then only people will guess. Suppose you drew the saying, God helps those who help themselves. अब इसको act करना है. So for God, you might try folding your hands and gazing upward. For helps, you could act out offering a helping hand or giving a leg up boost over a fence. By pointing at a number of real or imaginary people, you may elicit a response of them. And by this point, a partner may shout out, God helps those who help themselves. So ये procedure उन्होंने explain किया that, in case you get this saying, then how will you act? Success, like charades, interpersonal communication is a mutual ongoing process of sending, receiving, and adapting verbal and non-verbal messages. This is one more thing here, कि इसमें non-verbal messages भी है जो बाकी में नहीं थे. So because you're acting, you're not really talking, so it has non-verbal messages as well. And it is an ongoing process because उसी time,
people will make changes and no, you will tell, no, no, it's not this, but something like that. You will act and tell this. So it's an ongoing process of sending and receiving. So non-verbal messages with another person to create and alter the images in both of our minds. Images को आप describe करो. First of all, the person who's acting, जिसको कुछ act करने को मिला है, उसके दिमाग में कुछ image है और फिर उस image को act करता है. और वो same image तो दूसरे बंदे के दिमाग में form करने की कोशिश करता है. तो it's about images in both of their minds. Communication between us begins when there is some overlap between two images and is effective to the extent the overlap increases. Hence, जब एक one person A is acting out a certain thing, तो उसके दिमाग में एक इमेज है, जैसे ये गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, तो एक इमेज थी कि मैं कैसे कर सकता हूँ, उसने उसकी तरह एक्ट करने की कोशिश की. अब उसकी एक्टिंग से बी के दिमाग में कोई इमेज आएगी. तो सक्सेस कम्युनिकेशन, सक्सेसफुल हुई है हमारी कम्युनिकेशन या नहीं, दैट विल डिपेंड कि इसकी इमेज और जो इसने अपने दिमाग में इमेज बनाई वो कितनी परसेंटेज, कितनी एक्सटेंट तक सेम है. बिकॉज if it was different and this person formed a different image, then you will not be able to guess. So the communication would not be effective. It has to be effective only when these images are very similar to each other. So this, overlap, I mean, the extent to which they're similar, that should be more. But even if our mental pictures are congruent, communication will be partial as long we interpret them differently. But even if, picture same होने के बाद भी interpretation different हो सकती है. The idea that God helps those who have themselves could strike one person as a hollow promise, while the other might regard it as a divine stamp of approval for hard work. Dumb charade goes beyond the simplistic analogy of bowling and ping pong. It views interpersonal communication as a complex transaction. Why it is complex? Because इसमें non-verbal clues भी हैं, picture भी create करनी है, और सिर्फ picture create नहीं, उसकी interpretation भी same होनी चाहिए, in which overlapping messages simultaneously affect and are affected by the other person and multiple other factors. So ये इन्होंने एग्जांपल दिया था कि हाउ इमेजेस कैन बी डिफरेंट, लाइक फॉर सम इवन इफ इमेजेस कैन बी सेम, इंटरप्रिटेशन कैन बी डिफरेंट. कि गॉड हैव्स दोस हेल्प देमसेल्फ, किसी के लिए बहुत मतलब कोई इसमें बहुत बिलीव कर सकता है, कोई इसमें बिलीव नहीं कर सकता है. सो इट कैन बी डिफरेंट. सो दिस इज मच मोर कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन. तो ये सिंगल पहला जो मॉडल हमने पढ़ा बोलिंग, वो एक वन वे मॉडल था जिसमें सिर्फ आप एक्शन कर रहे हो. दूसरा जो पिंग पोंग वाला था उसमें इंटरेक्शन है, टू पीपल आर प्लेइंग विद ईच अदर, सो वन इज सेंडिंग, अदर इज रिसीविंग, द फर्स्ट इज रिसीविंग. और ये वाला तो ट्रांजैक्शन है, because it's not just about receiving and sending. There are many things happening together and it is much more complex. So this was our passage. Now let's answer the questions. The meaning closest to interchangeable in the communication as bowling paragraph is here. Where did we study it? Where did we study it? If the target, of course, it makes sense, only the target audience, target listeners are interchangeable. Static, pins, waiting. तो मतलब दे आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर, बिल्कुल सेम है, तभी वो सेम मैसेज उन पे अप्लाई कर सकते हो, सेम टेक्निक आप अप्लाई कर सकते हो. तो इंटरचेंजेबल हियर क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा, बिकॉज कॉम्प्लीमेंट्री मीन समथिंग इन एडिशन, नॉट सेम, है ना. मतलब हमें सिमिलर वाले मीनिंग का चाहिए. कॉम्प्लीमेंट्री इज समथिंग एल्स, लाइक ब्रेड एंड बटर आर कॉम्प्लीमेंट्री, बट वो सिमिलर तो नहीं है ना. कॉन्टिग्यूअस, कॉन्टिग्यूअस मीन्स लाइक जब आपकी जैसे एक प्लॉट ये है, दूसरा प्लॉट बिल्कुल उसके साथ कॉन्टिन्यूस, उसकी बाउंड्री से टच हो रहा है, फिर तीसरा प्लॉट टच हो रहा है, तो इसे बोलते हैं कॉन्टिन्यूस. तो वो भी ये नहीं है. इंटरचेंजेबल हियर मींस दैट सेम वे सेम मैसेज हो रहा है, तो इट हैज टू बी सिमिलर. तो कॉन्टिग्यूअस भी नहीं. कंफर्मिंग, कंफर्मिंग मींस किसी चीज को अप्लाई करना, जैसे सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ मॉरल्स हैं, अगर आप उन्हें मानते हो तो आप सोसाइटी के मॉरल्स को कंफर्म कर रहे हो. तो दिस इज ऑल्सो नॉट द केस. कंपैटिबल, कंपैटिबल मीन्स व्हेन two people are able to cooperate without fighting, that's compatible. Fifth, comparable. Yes, comparable means something which is very similar. तो interchangeable का meaning यहाँ पर comparable है. Answer is 5, comparable, nothing else here. Next question, which of the following option is the closest to the necessary condition of communication? Okay, necessary condition communication की. Threshold overlap of share images का, ये तो exact मतलब line यहीं से उठा लिया है कि हाँ, communication तभी हो सकती है जब दो images उन लोगों के दिमाग में, जो है ये person जो act कर रहा है और दूसरा बंदा जो उसके actions को समझ रहा है, उन दोनों के दिमाग में जो image है अगर वो overlap हो, similar है, तभी आप कोई communication कर सकते हो या आपकी communication successful होगी. So this is a very good option. Second, simultaneous exchange. Simultaneous exchange मतलब डायरेक्टली जरूरी नहीं है simultaneous exchange हो रहा बाद में हो सकता है, but the thing is image has to be same, जो exactly यहाँ पर given है. It is directly given. Nowhere in the passage ऐसे लिखा है कि simultaneous exchange ही होना चाहिए for necessary condition of communication. Ability to stimulate affect, not necessary stimulate आप उसको कर पाओ, ऐसे डायरेक्टली कहीं भी मेंशन नहीं. Ability to enact a drama, but enact a drama मतलब is a means. What is the end? अल्टीमेटली पॉइंट तो यही है ना कि जो मेरे दिमाग में थी वो आपके दिमाग में, भले ठीक है आप ड्रामा इनेक्ट कर पा रहे हो, लेकिन अगर इमेज ही ओवरलैप नहीं हुई तो आपका ड्रामे से क्या फर्क पड़ेगा. सो दिस इज नॉट द केस. एबिलिटी टू एलिसिट अ रिस्पॉन्स,
Now if you're able to elect the response, then just response is not द इम्पोर्टेंट थिंग। रिस्पॉन्स आ रहा है बट आपको अच्छी तरह सेम समझ नहीं आया है, सेम इमेज नहीं फॉर्म हुई है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो सक्सेसफुल कम्युनिकेशन है? द आंसर इज वन, विच इज द ओवरलैप ऑफ शेड। ये डायरेक्टली मतलब पैसेज में से उठाया हुआ था कि इट इज इफेक्टिव टू दी, उसे मतलब उसी एक्सटेंट तक इफेक्टिव है वेयर दिस ओवरलैप बिटवीन द images in both of our minds, if those images overlap, then that's effective. Next, the two inherent limitations of ping pong as a metaphor for communication. A metaphor means, metaphor means when you are comparing one thing to other, but how it is different. This is simile में क्या होता है कि you use words like this is like that, this is like this, it is working like that. आप क्योंकि उसके जैसा है, मेटाफर में हम उसको वो चीज मान लेते हैं विदाउट यूजिंग लाइक, है ना, उसी को वो चीज मान लेते हैं। तो जैसे पिंग, मतलब बेसिकली यहाँ पर आपको इतना ही समझना है कि जब हम उसको उसकी तरह यूज कर रहे हैं, उसका कंपैरिजन कर रहे हैं, तो पिंग पोंग का जब हम कंपैरिजन कम्युनिकेशन के साथ कर रहे हैं तो उसकी क्या लिमिटेशंस हैं? इट इज गवर्न्ड बाय कन्वेंशंस विद पॉसिबिलिटी फॉर अपील, इट हैज क्लियर रूल्स। यहाँ पर अपील्स के बारे में कोई बात नहीं हुई थी कि कि और कन्वेंशंस नहीं होती, बेसिकली रूल्स ही होते हैं गेम्स में। तो सो अपील के बारे में बात नहीं है, दिस इज नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन। The operating model is win-lose because only one individual team can win. The receiver can always predict the spin. एक तो ये क्वेश्चन में खुद ही लिखा हुआ है कि द रिसीवर कैन नॉट प्रिडिक्ट, ये तो गलत है। मतलब यहाँ पर खुद लिखा है कि जो सेंडर है उसको तो पता है बॉल कहाँ जाएगी, बट द रिसीवर डजंट, यू नो ही डजंट, कि बॉल कहाँ पे आएगी, इसलिए उसको हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा। सो ये तो पैसेज के अगेंस्ट है। थर्ड, द नंबर ऑफ प्लेयर्स इज लिमिटेड एज वेरी फ्यू कैन बी मीनिंगफुल एंगेज एट अ टाइम। करेक्ट, तभी वो इंटरेक्शन और तभी ये ट्रांजैक्शन है। इसमें इसलिए कहा था कि कोलैबोरेटिव होता है, कोऑपरेटिव होता है, ये इंटरेक्शन है। इसमें तो मतलब मेनली टू वे मॉडल ही है, दो लोग या मतलब बहुत कम ही लोग हो सकते हैं एक बार में, ज्यादा लोग तो नहीं खेल सकते पिंग पोंग को। सो दिस इज करेक्ट, ये लिमिटेड है और इसी की लिमिटेशन कवर कर रही है। देखो ये सब ना नेक्स्ट वाला जो मॉडल है पहले वाली की लिमिटेशन कवर कर रहा है कि इसमें सिर्फ वन वे था, तो नेक्स्ट मॉडल में टू वे हो गया। अब उससे भी नेक्स्ट में और ज्यादा, कोई एक बार में आप बहुत सारे को बता पाते हो, तो उसने ये इसके कम लोग वाली लिमिटेशन भी पूरी कर दी। तो दिस इज करेक्ट कि लिमिटेशन है, नंबर ऑफ प्लेयर्स इज लिमिटेड, मोस्टली दो ही लोग तो खेल पाते हैं एक बार में। द रूल्स ऑफ द गेम आर फिक्स्ड बाय द रेगुलेटर्स। यस, रेगुलेटर्स जो भी आप गेम खेल रहे होते हो तो वो फिक्स तो करते हैं गेम को, जो भी रूल्स होते हैं उनको फिक्स करते हैं और आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। बट कम्युनिकेशन में सच कोई फिक्स रूल्स नहीं होते हैं, राइट? सो दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन। इट डिमांड्स मोर स्किल्स ऑफ द रिसीवर देन ऑफ द स्पीकर। इट इज एज पैसिव एज बॉलिंग। नो, इट इज नॉट पैसिव एज बॉलिंग। बॉलिंग तो बिल्कुल ही पैसिव है, उसमें जो रिसीवर है वो कुछ कर ही नहीं सकता है, ही इज जस्ट रिसीविंग द मैसेज। जो पिन्स हैं वो बॉल मिली वो गिर जाएंगी बस, और कुछ नहीं है। बट वेर एज पिंग पॉन्ग में तो दूसरा बंदा दोबारा से सर्व भी तो करता है बॉल, तो इट इज नॉट एज पैसिव एज बॉलिंग, ये गलत ऑप्शन है। Fifth, real life communications is like dumb charade with multiple players. There are multiple balls used in dumb charades. No, there are multiple balls which are used in no. ये अभी बताया कि balls नहीं यूज होती है उसमें, तो कुछ गेम्स हम स्लिप्स वगैरह यूज करते हैं। सो और सारी रियल लाइफ कम्युनिकेशन मल्टीपल प्लेयर्स में नहीं होती है। रियल लाइफ कम्युनिकेशन दो लोगों में भी होती है, बट जस्ट सेइंग इट रियल लाइफ, तो मतलब कंप्लीटली वो नहीं कह सकते। हाँ, लिमिटेशन है इस मॉडल की कि इसमें दो पे ही अप्लाई हो सकता है, बट ये मल्टीपल बॉल्स यूज्ड, सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ गुड ऑप्शन। ऑप्शन इज थ्री, कि इसकी एक लिमिटेशन है कि मतलब अगर हम ये मॉडल अप्लाई सिर्फ कम लोगों पे कर सकते हैं, ज्यादा लोगों पे ये वाला मॉडल अप्लाई नहीं कर सकते। बट फिफ्थ में इसका मतलब ये नहीं है कि रियल लाइफ में होता ही नहीं है। फिफ्थ में देखो एक्सट्रीम हो गया, मतलब जो बात कह रहे हैं उसको एक अलग लेवल पे एक्स्ट्रा जाके बोल रहे हैं, एग्जैजरेट कर रहे हैं। थर्ड में हाँ लिमिटेशन है कि भाई एक बार में कम ही लोगों पे होता है, जब ज्यादा लोगों की बात होगी तो ये वाला मॉडल अप्लाई नहीं किएगा। और सेकंड की जो रेगुलेटर्स है उसमें फिक्स रूल्स होते हैं, बट रियल कम्युनिकेशन में इतने फिक्स रूल्स नहीं होते हैं। सो आंसर इज थ्री। आंसर इज थ्री, द नंबर ऑफ प्लेयर्स इज लिमिटेड। नेक्स्ट, एक्शन, इंटरैक्शन एंड ट्रांजैक्शन इज क्लोजेस्ट टू। हाँ, ये एक्शन था, ये इंटरैक्शन था और ये ट्रांजैक्शन था। एडवर्टाइजिंग, अच्छा एक्शन होता है सिंगल वे, एक बार में मतलब एक ही साइड से मैसेज जा रहा है दूसरी साइड का रिस्पॉन्स, तो एडवर्टाइजिंग एग्जैक्टली वही है, जो भी टीवी में कहीं भी ऐड आ रही है। बाकी तो पैसिव लिसनर्स हैं, वो कुछ कर ही नहीं सकते। बायर निगोशिएटिंग विद द सेलर, हाँ ये टू वे है, इसमें दो लोग एक बार अपना कोई पॉइंट रखता है, दूसरा वाला पहले सुनता है फिर बाद में अपना पॉइंट रखता है, जस्ट लाइक पिंग पॉन्ग में बॉल इधर से उधर सर्व होती है।
ये भी ठीक है इंटरेक्शन। ट्रांजैक्शन, बिडिंग फॉर अ प्लेयर इन इंडियन प्रीमियर लीग, तो आईपीएल में जो बिडिंग हो रही है वो ट्रांजैक्शन है, बहुत सारे लोग एक बार में इन्वॉल्व हैं, बिडिंग हो रही है, जस्ट लाइक हमने यहाँ पे डम श्रेड्स का एग्जांपल था, तो यहाँ पर भी वो बिडिंग हो रही है, तो एक ट्रांजैक्शन है, बहुत सारे लोग हैं, कोऑपरेशन है, सो दिस इज अ ट्रांजैक्शन। एग्जांपल अच्छा है। ऑप्शन नेक्स्ट, प्रिपेयरिंग एन इलेक्शन मैनिफेस्टो, सिर्फ प्रिपेयर करने से कुछ नहीं होता है, यू हैव टू पुट इट इन फ्रंट ऑफ पीपल, तब उससे आप कम्युनिकेशन करोगे। सिर्फ प्रिपेयर करके आपने एक पेपर पे लिख लिया। व्हाट इज इलेक्शन मैनिफेस्टो? जो इलेक्शन से पहले पार्टीज अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी करते हैं कि हम लोग इलेक्शन जीत गए तो ये काम करेंगे। तो प्रिपेयरिंग से फर्क नहीं होता, यू हैव टू एडवर्टाइज इट टू पीपल। सो फर्स्ट पार्ट रॉन्ग है। एड्रेसिंग अ पब्लिक गैदरिंग, ये इंटरेक्शन नहीं है, इधर तो सिर्फ लोग मतलब सुन ही रहे हैं ना, तो कुछ ज्यादा हो नहीं रहा है। दोनों वे से, जैसे फर्स्ट में था निगोशिएशन हो रही है, दोनों साइड अपने अपने पॉइंट्स रखेंगे, बट ये वो नहीं है इंटरेक्शन। एंगेजिंग इन डोर टू डोर कैनवसिंग, ये ट्रांजैक्शन नहीं है, ये इंटरेक्शन है, क्योंकि इसमें भले मल्टीपल लोग हैं पर साइमल्टेनियसली नहीं है। एक बार में तो दो ही लोग है ना, आप एक घर जाओगे फिर आप दूसरे घर जाओगे, सारे लोगों से एक बार में तो नहीं कर रहे हो ना, सो दिस इज नॉट ट्रांजैक्शन, दिस इज इंटरेक्शन। सो ऑप्शन बी इज आउट। थर्ड, प्रिपेयरिंग फॉर एमबीए एंट्रेंस एग्जाम, ये गलत है, ये कोई कम्युनिकेशन नहीं। राइटिंग एन एमबीए, ये एक्शन और इंटरेक्शन का एग्जाम्पल नहीं है। राइटिंग भी तो सिंगल वे है, आपने लिख दिया, अब दूसरा बंदा चेक करेगा करेगा, मतलब इट्स नॉट अबाउट कम्युनिकेशन। फेसिंग एन इंटरव्यू फॉर बिजनेस स्कूल, इसमें बहुत सारे लोग क्वेश्चन करने के लिए हैं, बट पहले वाले ऑप्शंस जो दो हैं वो सही नहीं है। अप्लाइंग फॉर लर्नर लाइसेंस, निगोशिएटिंग विद ड्राइवर्स, ड्राइविंग स्कूल, ड्राइविंग अ कार, ये कम्युनिकेशन के अच्छे एग्जाम्पल्स ही नहीं है। जब आप अप्लाई कर रहे हो आप कोई कम्युनिकेशन थोड़ी कर रहे हो ज्यादा, मतलब दूसरे बंदे के पास ऑप्शन है ना। अब एक्शन में तो दूसरे के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता, पैसिव होता है, बट जो अप्लाई कर रहे हो तो ऑफ कोर्स द अदर पर्सन हैज द राइट, क्या वो दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, तो सिर्फ एक्शन नहीं है। निगोशिएटिंग इज ऑल राइट, बट फिर ड्राइविंग अ कार भी ट्रांजैक्शन नहीं है इतना, आप सिंगल हैंडली ड्राइव कर रहे हो। बट फर्स्ट वाला तो पक्का गलत ही है, तो फोर्थ भी अच्छा एग्जाम्पल नहीं है। फिफ्थ, निगोशिएटिंग ओवरसीज, निगोशिएटिंग नहीं होता एक्शन, वो इंटरेक्शन होती है, तो वो एक्शन का एग्जाम्पल है, इसको यहीं पे ही गलत कर सकते हैं। तो ऑप्शन है वन, एडवर्टाइजिंग, निगोशिएटिंग और बिडिंग। एडवर्टाइज वन वे है, निगोशिएटिंग टू वे है, बिडिंग मल्टीपल प्लेयर्स एट द सेम टाइम। सो आंसर इज वन। So this passage is over. So now let's begin with another passage. The base of objectivism, according to Ayn Rand, is explicit. Existence exists, and the act of grasping that statement implies two corollary axioms: that something exists which one perceives, and that one exists possessing consciousness. Consciousness being the faculty of perceiving that which exists. Now, this is a philosophical passage. Now, objectivism, what is objectivism? It is a philosophy, that there are certain things that exist independently. They are not dependent on you or your thinking, for example, certain natural forces. So, objectivism means that exist independently. So, as per this particular philosopher, objectivism का base किस चीज पे है? कि there is existence, existence exists. And this statement leads to two corollaries. Which are these corollary? That something exist which one perceives, मतलब जो आप perceive कर रहे हो वो चीज exist करती है, और आप इसलिए perceive कर पाते हो because consciousness है। consciousness के बिना perceive नहीं की जा सकती। For example, you are conscious, a living human being is conscious, let's say you are conscious. So because of your consciousness, you can see that, okay, this dog is existing, you can perceive that dog because of your consciousness. And one thing जो पहले बताया कि you can perceive, it means it is existing, right? So these are two corollary. I know this is little philosophical, but this is what this is saying. Existence and consciousness are facts implicit in every perception. They are the base of all knowledge and the precondition of proof. Knowledge presupposes something to know and someone to know it. They are absolutes which cannot be questioned or escaped. Every human utterance, including the denial of these axioms, imply their use and acceptance. Now, what is this saying? पहले तो हमने दो axioms पढ़ लिए, कि एग्जिस्टेंस वाली, और दूसरी की कॉन्शियसनेस है, तभी आप परसीव कर पा रहे हो। तो एग्जिस्टेंस एंड कॉन्शियसनेस, अब नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट नॉलेज, कि नॉलेज प्रीसपोजेस टू थिंग्स, you have to assume when we're talking about knowledge there are two things: something to know and someone to know. कोई भी knowledge है, for example let's say this person has knowledge of this thing, तो
कोई इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जानने के लिए, उसे ही तो आप नॉलेज कहोगे, और कोई इंसान होना चाहिए जो इस इंफॉर्मेशन को जानता हो। सो वो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए समथिंग टू नो एंड समवन टू नो, यू नो दैट पर्सन हु इज हैविंग दैट नॉलेज। तो इसलिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है फॉर नॉलेज, और दीज आर एब्सोल्युटली यू कैन नॉट क्वेश्चन देम इवन इफ यू आर डिनाइंग इट। You know, even if you're denying it, then you're saying whatever, you are just having any opinion about them. Even if you're denying them, it actually means that, you know, you are actually using them, because even when you're denying them, that means you are using your own knowledge, your own perception, then only you are giving certain opinion. तो मतलब ये तो एब्सोल्यूट है, ये जो एक्सियम है कि फॉर नॉलेज यू नीड समथिंग टू नो एंड समवन टू नो। सो दिस इज, यू नो, दिस इज समथिंग दैट हैज टू बी एक्सेप्टेड। तो द थर्ड एक्सियम एट द बेस ऑफ नॉलेज, अभी दो एक्सियम हमने पढ़ी थी, एक तो एग्जिस्टेंस वाली, दूसरी कॉन्शियसनेस होती है, उसी वजह से परसीव कर पाते हैं। अब थर्ड एक्सियम क्या है? एन एक्सियम ट्रू इन एरिस्टोटल्स वर्ड्स of being qua being is the law of identity. This law defines the essence of existence to be something. A thing is what it is. A thing is what it is and leads to the fundamental principle of all action, the law of causality. Now, what is this saying? कि Aristotle का एक law है, qua being, which is the law of identity. उसमें क्या है? That it is, a thing is what it, to be is to be something, a thing is what it is. For example, when I say apple जो है, apple is a thing, what it is. Apple जो वो है, you know, it's red, it's shape, taste, तो वो वही है जो वो है, जो उसका नेचर है वो वही चीज है। You know, basically it means जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उसकी क्वालिटीज हैं, जो उसका नेचर है, वही वो चीज है। आप उसको वैसे डिफाइन करोगे। सो वो है कोआ बीइंग एज पर एरिस्टोटल। The law of causality states that a thing's actions are determined not by chance but by its nature, that is by what it is. तो मतलब now this another law, वो तो law of identity था, law of causality action पे based है। Law of identity was based on nature, कि किसी भी चीज, मतलब कोई चीज क्या है, जो वो है, जो उसका नेचर है वही वो चीज है। और सेकेंडली जो ये लॉ ऑफ कॉजालिटी वो क्या है, कि किसी भी चीज के जो एक्शन होते हैं ना, दैट इज डिटर्मिन्ड कि उसका नेचर क्या है, कोई बाई चांस नहीं होता है। यू नो, अ डॉग इज बिहेविंग इन अ सर्टेन वे, तो वो कोई बाई चांस नहीं हो रहा, उसका नेचर ऐसा है, मतलब ही इज मेंट टू डू दैट पर्टिकुलर थिंग। तो वो है लॉ ऑफ कॉजालिटी की एक्शन जो आपका नेचर है। डॉग का नेचर कुछ जैसा है वो वैसे बिहेव करेगा, कैट अलग बिहेव करेगी क्योंकि कैट अलग है, कैट की आइडेंटिटी नेचर अलग है, ह्यूमन अलग है। डोंट यू सी व्हेनेवर यू नो देयर वेरी वेरी हेनियस क्राइम्स, बहुत हेनियस क्राइम्स होते हैं, तो कहते हैं दिस इज अगेंस्ट ह्यूमन नेचर, मतलब ह्यूमंस आर नॉट सपोज टू बिहेव लाइक दिस। ह्यूमंस का नेचर ऐसा नहीं है कि वो एक दूसरे को इतनी बुरी तरह मतलब किसी को नुकसान पहुंचाए, जो बहुत ज्यादा हेनियस क्राइम होता है। तो वो इट मीन्स दिस ओनली कि action that a thing will perform will depend on its nature. It is not something coincidence or by chance. So this is law of causality. It is important to observe the interrelationship of these three axioms. Okay. Existence is the first axiom. Yes. The universe exists independent of consciousness. तो universe exist करता है चाहे आपकी consciousness मतलब है या नहीं है. For example, even if something is not conscious or somebody dies, ठीक है, उस ह्यूमन की कॉन्शियसनेस नहीं है, तो क्या यूनिवर्स तो फिर भी एग्जिस्ट करता है ना। एंड इवन इफ वी हैव कॉन्शियसनेस तब भी यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है। तो मतलब यूनिवर्स की जो एग्जिस्टेंस है वो कॉन्शियसनेस की इंडिपेंडेंट है। Man is able to adapt his background to his own requirements, but nature to be commanded must be obeyed. तो कह रहे कि मतलब यूनिवर्स तो अपने आप में अलग से इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है, यू कांट, इट हैज नथिंग टू डू विद यू, बट यू नो यू कैन चेंज योरसेल्फ। आपको अपनी रिक्वायरमेंट के साथ खुद अडेप्ट करना है तो करो। सो देन दे आर सेइंग नेचर टू बी कमांडेड मस्ट बी ओबेड, मतलब नेचर को अगर हम थोड़ा चेंज करना चाहते हैं ना, तो you know it must be obeyed. First you must obey it, first you must understand it, must first you must follow it, तभी आप उसको थोड़ा चेंजेस कर पाओगे। सो फर्स्ट अगर आपके दिमाग में ये आ भी रहा है ना दैट यू कैन चेंज नेचर, यू कैन लिटिल बिट चेंज इट, या you can put exert some influence on it, then first learn to obey it the way it is. Or for example, you know, like you would have seen in Ramayana that how when Shri Ram you know wants to go to Sri Lanka, so he's praying to the water god, sea god, ki please make a way for me. So you know he was somebody who's obeying it, praying it, तब नेचर थोड़ा बहुत चेंज हुई है। तो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग कि यूनिवर्स तो एग्जिस्ट कर ले बिना कॉन्शियसनेस के, बट इट इज मैन हु हैज टू चेंज इट। इन केस यू वांट टू मेक चेंजेस, फर्स्ट मस्ट ओबे इट। देयर इज नो मेंटल प्रोसेस दैट कैन चेंज द लॉज ऑफ नेचर, इरेज फैक्ट्स। अब जैसे फॉर एग्जांपल
अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड सन, तो क्या आप सोच के उसको बदल सकते हो कि नहीं बाकी प्लैनेट्स को अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करना चाहिए, हमें सेंटर में होना चाहिए? सो लॉज ऑफ नेचर कैन नॉट बी चेंज थ्रू योर मेंटल प्रोसेस, राइट? The function of consciousness is not to create reality, but to apprehend it. Existence is identity, consciousness is identification. तो consciousness, you are conscious, consciousness aware हो आप अपनी सारी चीजों का, तो consciousness से आप reality नहीं बना सकते ना कि let's have another planet Earth, उससे आप क्रिएट नहीं कर सकते हो, बट यू इट इज मेंट टू एप्रीहेंड इट. दैट इज वाई ऑल दिस मेडिटेशन एंड ऑल ऑल दीज थिंग्स वी हैव, these are meant so that your consciousness becomes clear. ज्यादा consciousness आप में आए, उसकी मतलब consciousness के भी अलग अलग levels होते हैं. Even if everybody is conscious, somebody's consciousness is higher. So because of that, what will happen? So you will be able to apprehend things in a better way. So that is why we have consciousness. ताकि आप इसलिए नहीं कि आप रियलिटी बना पाओ, ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाओ. सो एग्जिस्टेंस तो आइडेंटिटी है, कॉन्शियसनेस इज आइडेंटिफिकेशन. तो एग्जिस्टेंस तो एग्जिस्ट करता ही है, मतलब दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन यू, यू कांट क्रिएट इट. बट कॉन्शियसनेस का फंक्शन है उसको आइडेंटिफाई करना. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ समबडी इज ड्रंक, देन देयर कॉन्शियसनेस इज रियली लो, तो वो अच्छी तरह आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर एक एप्पल है एंड यू आस्क समबडी हु इज ड्रंक, मे बी ही इज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई, उसको कुछ और नाम बोल दे कि क्या है. इफ यू आस्क दिस पर्सन व्हाट इज दिस, ही और ही मे रीड some letters or some other letter. तो consciousness तो आइडेंटिफाई करने के लिए होती है कि वो चीज है क्या. So this was the passage. It was quite philosophical but quite interesting. So let's come to question. Which of the following is definitely correct according to the passage? Only what can be perceived exist? No. अभी कहा ना बहुत सारी चीजें तो यूनिवर्सल, जैसे यूनिवर्स कॉन्शियसनेस के इंडिपेंडेंट है. मतलब कॉन्शियसनेस किस लिए चाहिए होती है? हमें परसीव करने के लिए. हम अपनी कॉन्शियसनेस की वजह से तो चीजें देख पाते हैं. तो क्या सिर्फ हम जो चीज देख पाते हैं वही चीज एग्जिस्ट करती है? नहीं. एग्जिस्टेंस में बहुत सारी चीजें हैं जो आप नहीं परसीव कर सकते. फॉर एग्जाम्पल ब्लैक होल आप नहीं परसीव कर सकते अपने सेंस से, बट दे स्टिल एग्जिस्ट. और ऐसी बहुत चीजें हो सकती है जिसका नाम भी नहीं पता, अभी तक हमने डिस्कवर ही नहीं किया है. तो एग्जिस्टेंस में देयर कैन बी थिंग्स व्हिच कैन बी परसीव्ड बाय यू, देयर कैन बी थिंग्स व्हिच कैन नॉट बी परसीव्ड, बट दैट डजंट मींस कि जो हम परसीव नहीं कर सकते वो एग्जिस्ट नहीं करती. सो ओनली व्हाट कैन बी परसीव्ड एग्जिस्ट? नो, देयर कैन बी थिंग्स व्हिच कैन नॉट बी परसीव्ड बट दे स्टिल एग्जिस्ट. तो ये करेक्ट नहीं है. सेकंड, व्हाट एग्जिस्ट इज परसीव्ड. अब ये बिल्कुल फर्स्ट के जैसे मीनिंग ही बन रहा है कि जो भी एग्जिस्ट करती है वो परसीव की जा सकती है. नहीं, कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो एग्जिस्ट करती हैं बट परसीव नहीं की जा सकती हैं. तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. What exists is perceived? No, there can be things that exist but still not perceived. Third, all that exists does not have consciousness. All, everything. मतलब ऐसे एक्सट्रीम स्टेटमेंट को तो वैसे भी ध्यान से पढ़ा करो, मोस्ट ऑफ द टाइम दे वोंट बी करेक्ट. बट हाँ, अगर कोई ऑप्शन नहीं होता देन वी कैन सेलेक्ट देम, बट you should be more cautious. I'm not saying eliminate them, it's just that be more careful. All that exists does not have consciousness. You and me are existing, but we do have consciousness. That is why I'm able to teach you, and that is why you're able to study. So all तो नहीं, मतलब लोगों को होता है ओपिनियन कि नॉन लिविंग थिंग्स में कॉन्शियसनेस है, नहीं है, वो बात अलग है. बट ऑल तो नहीं कह सकते ना. इफ यू एंड मी आर हैविंग इट, तो डेफिनेटली ऑल तो नहीं हो सकता कि एवरीथिंग डजंट हैव कॉन्शियसनेस. यू एंड मी आर हैविंग इट, सो ये तो गलत है. कॉन्शियसनेस मेक्स परसेप्शन ऑफ बीइंग पॉसिबल. करेक्ट, कि कॉन्शियसनेस की वजह से ही आप की परसेप्शन होती है. आप चीजें अपने आसपास क्या हो रहा है परसीव इसलिए कर पाते हो क्योंकि आप कॉन्शियस हो. व्हेन यू बिकम अनकॉन्शियस, यू आर स्लीपिंग और यू आर व्हेन यू बिकम फेंटेड और यू आर ड्रंक, तो आपकी परसेप्शन सही नहीं होती. तो ऑफ कोर्स कॉन्शियसनेस नहीं है तो परसीव ही नहीं कर पाओगे. तभी तो वी से डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, क्योंकि कॉन्शियस नहीं हो आप तो परसीव नहीं कर पाओगे अपनी सराउंडिंग्स को. सो कॉन्शियसनेस मेक्स परसेप्शन ऑफ बीइंग पॉसिबल. फोर्थ इज करेक्ट. Fifth, something to be known and someone to know are the conditional sign co-known for existence. Now this means कि बहुत critical है. Something to be known and someone to know, ये बहुत critical conditions है for existence. No, these are conditions for knowledge, not for existence. यहाँ पे हमने पढ़ा ना, knowledge presupposes two things, कि कोई information होनी चाहिए जिसको जानना है और कोई ऐसा होना चाहिए जो उसको जाने. तो ये existence की conditions नहीं है, ये तो knowledge की है. So fifth is incorrect. Answer is fourth. Consciousness makes perception of being possible. Next, which of the following is the essence of the law of causality? Okay, to be is to be something, being को being नहीं, ये आइडेंटिटी वाला लॉ था कि आपका जो नेचर है वो आप हो. कॉजालिटी तो एक्शन वाला था कि हमारा एक्शन डिपेंड करता है. सो ये सिर्फ आइडेंटिटी वाला था. ए इज नॉट करेक्ट. लॉ ऑफ कॉजालिटी क्या था कि
जो लॉ ऑफ कॉजालिटी स्टेट्स दैट द थिंग्स एक्शंस आर डिटरमिन्ड नॉट बाय चांस बट बाय इट्स नेचर, जिसका जैसा नेचर होगा वो उसके अकॉर्डिंग एक्शन करेगा. वन एनिमल विल बी डिफरेंट फ्रॉम अनदर एनिमल, मतलब एक्शन ऑफ ह्यूमन विल बी डिफरेंट फ्रॉम एक्शन ऑफ बर्ड्स, action of birds will be different from action of animal because our nature is different, so it cannot be same. Our action will depend on our nature. So one is not talking about action at all. Out. B, wishing to become something else denies the nature of that being. ये हमने passage में कहीं भी नहीं पढ़ा कि you become something else or something like that. Nowhere it is being talked about. This is out. The law of identity is the same as the law of causality. No, law of identity means जिस चीज का जो चीज वही है जो उसका नेचर है. एप्पल एप्पल है क्योंकि वो रेड है, उसमें वैसा टेस्ट है, वो एक फ्रूट है. कॉजालिटी इज डिपेंडेंट ऑन एक्शन. आइडेंटिटी में एक्शन का कुछ नहीं है, तो दोनों सेम नहीं है. रॉन्ग. अ सेंस ऑफ एग्जिस्टेंस, नो, इसमें मीनिंग बताना है, ये तो सिर्फ स्टेटमेंट है, मीनिंग बता ही नहीं रही है कि इसका मीनिंग क्या है. एक्शंस ऑफ बीइंग आर डिटरमिन्ड बाय इट्स नेचर. करेक्ट आंसर है फिफ्थ, कि एक्शंस जो हैं वो आपके नेचर पे डिपेंड करते हैं. Which of the following can be best captured as identity and identification? हमने एंड में पढ़ा एग्जिस्टेंस इज आइडेंटिटी, कॉन्शियसनेस इज आइडेंटिफिकेशन. मतलब कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है वो उसकी आइडेंटिटी है, लेकिन आप उसको समझ पा रहे हो, उसको परसीव कर पा रहे हो, वो आइडेंटिफिकेशन है. फॉर एग्जाम्पल एक एप्पल है और वो मतलब उसकी जो है एग्जिस्ट कर रही है वो एप्पल, वो उसकी आइडेंटिटी है कि वो एप्पल है, वो रेड है, वो राउंड है, जो भी उसकी शेप है, टेस्ट है. लेकिन आप उसे कॉन्शियसनेस से समझ पा रहे हो, अच्छा ये एप्पल है, मतलब उसके लिए कॉन्शियसनेस चाहिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको कॉन्शियसनेस चाहिए, वरना आप कह दो कि तो मैंगो है या कुछ भी है, मतलब तो कॉन्शियसनेस चाहिए होती है उस चीज को, वो जो चीज है आइडेंटिफाई करने की. एप्पल एप्पल है, ये मैं कॉन्शियसनेस से आइडेंटिफाई कर पाऊंगी, राइट. इसलिए समबडी हु इज अनकॉन्शियस वो उस चीजों को नहीं, मे भी कोई कुछ लिखा हुआ है वो उसको सही से पढ़ नहीं पाएगा क्योंकि वो पूरी तरह भी कॉन्शियस नहीं है. तो आइडेंटिफाई करने के लिए चीजों को कॉन्शियसनेस चाहिए, आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो चीज वही चीज है, राइट. Now, college has identity perception of cultural events as identification. Twitter has identity perception of Twitter as identification. Now देखो तो अंतर है. कॉलेज आइडेंटिटी की एक चीज इवेंट करती है, परसेप्शन ऑफ कल्चरल इवेंट्स एज आइडेंटिफिकेशन नहीं होना था. वही चीज को आप जैसे आइडेंटिफाई कर रहे हो, मतलब कॉलेज एज आइडेंटिटी और कॉलेज है उसकी परसेप्शन वो आइडेंटिफाई, जैसे सेकंड में है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड? फर्स्ट में आइडेंटिटी किसी और चीज की लिखी है और आप आइडेंटिफाई किसी और चीज को कर रहे हो, बट द थिंग इज दे हैव टू बी सेम. ट्विटर एज आइडेंटिटी, ट्विटर इज एग्जिस्टिंग, वो उसकी आइडेंटिटी है, और आप परसीव कर पा रहे हो कि वो ट्विटर है, दैट इज आइडेंटिफिकेशन. ट्विटर एज आइडेंटिटी एंड परसेप्शन ऑफ ट्विटर एज आइडेंटिफिकेशन. तो you can see the difference, why one is incorrect but two is correct. Third, government as identity, perception of taxation of citizens as identification. Same error जो फर्स्ट में थी, आइडेंटिटी कुछ और हो रही है, आइडेंटिफिकेशन किसी और चीज की हो रही है, टैक्सेशन की हो रही है. फोर्थ में आइडेंटिटी है मैरिज और आइडेंटिफिकेशन है परसेप्शन ऑफ चिल्ड्रन. नहीं, इट शुड हैव बीन सेम थिंग. मैरिज इज डिफरेंट, चिल्ड्रन आर डिफरेंट. एमबीए एज आइडेंटिटी, परसेप्शन ऑफ कैंपस प्लेसमेंट एज आइडेंटिफिकेशन. नो, एमबीए एज आइडेंटिटी एंड परसेप्शन ऑफ एमबीए एज आइडेंटिफिकेशन सही होना चाहिए था. तो आउट ऑफ दीज 5, 4 आर इनकरेक्ट बिकॉज आइडेंटिटी कुछ और है और आइडेंटिफिकेशन कुछ और है, और वो उसी चीज की होनी चाहिए कि मैं जो चीज है उसको वैसे ही समझ पाऊं, ये मतलब आइडेंटिटी और आइडेंटिफिकेशन है, विच इज ओनली 2. ट्विटर एज आइडेंटिटी, परसेप्शन ऑफ ट्विटर एज आइडेंटिफिकेशन. नाउ लाइक नाउ दिस इज कॉमन सेंस ऑल्सो. 5 में से 4 बिल्कुल सेम है और एक अलग है और आपको यही लिखना है. तो समवेयर यू शुड बी मोर कॉशियस कि ये आंसर, मतलब इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ सकते हैं, इसके चांस ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है. आई एम नॉट सेइंग एनी रूल और समथिंग लाइक दैट, बट थोड़ी मतलब इतना पैटर्न हम देख सकते हैं कि चारों में सेम मिस्टेक है, एक है जिसमें वो चीज नहीं है और एक ही चूज करना है. तो बी लिटिल केयरफुल अबाउट दिस थिंग. The author would interpret Francis Bacon's nature to be commanded must be obeyed. आप उसे कुछ कमांड करना चाहते हो तो पहले उसको ओबे करना सीखो. Reality should not be modified or escaped but faced. ऐसा नहीं है, we are not talking about that कि you cannot modify. वो कह रहे अगर modify करना चाहते हो तो पहले ओबे करना सीख लो. Man's existence depends on nature's whims. नहीं, ऐसा भी नहीं है कि everything is nature. हाँ, बिल्कुल nature की whims and fancies पर dependent है, ऐसा नहीं है statement. मतलब कि if you want to command it, अगर nature को order देना चाहते हो तो पहले उसको obey करना सीख लो. इस line का meaning ये है. तो second is also essentially and objectively nature is superior to humans. I mean again this is not something जो directly इसकी बात कर रहे हैं कि essentially and objectively nature is superior to humans. नेचर ऐसे ह्यूमंस का कोई कंपैरिजन इतना नहीं हुआ है यहाँ पे. ऑब्स्टिकल्स आर बेटर सर्कमवेंटेड देन कंट्रोल्ड देन कन्फ्रंटेड. ऑब्स्टिकल्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पे. बिफोर चैनलिंग नेचर वन मस्ट फर्स्ट कॉम्प्लाई विद. एग्जैक्ट यही मीनिंग है. आई गेव यू एग्जांपल ऑफ श्री राम, लॉर्ड श्री राम, वेयर बिकॉज ही वांटेड टू चैनलाइज